Hello everyone. Welcome to the module on motivation and background of cloud computing. In this module, we are going to study about how the enterprises and individuals they got motivated and moved towards the cloud computing. Okay, whatever we are doing is being actually converted into digital stuff. तो हम इस वक्त जिस एज में रह रहे हैं, era we are living in, उसमें चीजें जो हैं वो आपकी मैक्सिमम कन्वर्ट हो रही हैं into bits and they are connected through cables or through the wireless media. Now assume some scenarios. The first scenario is outsource data center. Okay, so we are talking about a cloud की motivation कैसे बने, how we reach towards the cloud journey. तो उसमें अगर हम देखें तो there are a few scenarios. So I mentioned 5 scenarios here. So the first scenario is outsourced data centers. So what is outsourced data center or how we reach towards this thing? If you go back to the early days में क्या होता था? We were used to have mainframe computers, and these mainframes they were connected through some terminals. और ये terminals जो थे they were generally used to be the dumb terminal जिनकी अपनी कोई processing power नहीं होती थी, and all the computation was done mainly on the central mainframe computer. फिर mainframe के बाद जब computers जो हैं वो lower end पे आने लग गए, तो then we got the mini computers as well, or eventually we ended up with the PC. तो ये जो mainframes they were very large scale or large size computers, और उन्हीं के साथ लोग जो है वो कनेक्ट होके काम किया करते हैं. आस्ता आस्ता जैसा मैंने कहा we went towards mini, and mini से we went to the PC era. PC में क्या difference था? The PC they were supposed to be used by one individual. एक बंदा जो है वो PC को use करता था, and they were used to do some sort of individual work onto their computers. PC again they got network. ठीक है, तो PC जब networked हो गए तो okay, so the PCs they got networked, and user they started talking to other species as well. तो PC में क्या था कि PC they have their own computing power. Each terminal, each computer they have their own computing power. And once they got network, so they were able to do work individually, and then they were able to work in collaboration as well. ये collaboration बहुत ज़्यादा increase हो गया once we entered into the World Wide Web. So we got the web time, and with the web time, we got globally connected. क्योंकि जो early days की connectivity थी of the PC, it was only on a small scale in a local area. But then we got the wide area networks. We got the web. ठीक है, और web में different किस्म के काम हुए. We got first ARPANET, etc. And then we got internet. तो जब internet आ गया, तो then ये हमारे पास है. Then this web started becoming big and big. तो काफी बड़ा वेब होने लग गई. अब सर्वर्स भी कॉम्प्लेक्स चाहिए होते थे. Then we got the concept of clusters of workstations or clusters of PCs or clusters of servers. ठीक है, तो क्लस्टर्स बनने शुरू हो गए. तो क्लस्टर किस तरह से होते हैं? ये एक किस्म का मॉडल हो सकता है. दिस इज सिमिलर टू द कंप्यूटर्स दैट यू हैव इन योर लैब्स, लेट्स से. तो वो लैब्स के कंप्यूटर्स को अगर आप नेटवर्क कर दें एंड यू मेक देम अपीयर टू द यूजर लाइक दे आर वन कंप्यूटर, तो इट बिकम्स अ क्लस्टर. ठीक है, क्लस्टर्स जो हैं दे गॉट इवन मोर बिगर एंड बिगर एंड बिगर. ठीक है, सो वी कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सेंटर. ठीक है, तो ये data centers when they are very large scale, massive scales, clusters of computers where the computation is being done. So in the picture you can see a Microsoft data center in Dublin, and it's quite an old picture now. I think would be around 8 9 years old, or still at that time it's quite a large one. And now even we do have even bigger and bigger data centers as well. और अगर आप इसकी वो देखें area जो है, that is about 27,000 square meters with the power requirement of 22 megawatts.
so it's consuming a lot of energy. हमारे अच्छे खासे सिटी के साइज के बराबर जो है it's consuming the energy. और जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है that is about $500 million. ठीक है, $500 million, not in rupees. So the data centers, जब आप हम तक पहुंचे, कंपनीज ने अपने डेटा सेंटर्स बनाना शुरू कर दी. थिंग्स जो थी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई कंपनीज की. तो जब वंस दे रीच एट द लेवल के वेयर अ कंपनी रिक्वायर्स अ डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर के साथ प्रॉब्लम क्या था कि दे नीड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. इन 2007 में 1.5% of all US electricity was going for the data center, and right now it would be even more. इसी तरह जब डेटा सेंटर बनाना है, so it requires a lot of time to build. फिर इनफ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है काफी सारी. ये नहीं होता कि आपने 2 कंप्यूटर्स ऐड कर दिए, बल्कि क्या होता है, यू आर गोइंग टू build a new building with infrastructures, and then you are going to buy a large number of computers as well. ठीक है, तो वो काफी सारी इनफ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट हो जाती है. फिर जितने बड़ी चीज होती जाती है उतनी कॉम्प्लेक्स भी होती जाती है, एंड देन यू नीड टू हैव मोर स्पेशलाइज्ड स्किल्स. वो चाहे आपकी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, उसके फेल आवर्स के हवाले से, इन सब में आपको स्पेशलाइज स्किल्स ज्यादा चाहिए. So it's a big challenge for the human resources departments to find out the people with such skill set. तो काफी challenging होता है. Then आपका बहुत ज्यादा focus जो है while you are building a data center, it goes towards the other things जो कि आपकी core competencies नहीं है. ठीक है, आप let's say एक financial sector है, you are a banking industry, और आप बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट थी, जैसे आप अभी देखते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो इट हैज बिकम टू मच डिपेंडेंट ऑन आईटी. तो आपका डेटा सेंटर बन गया एंड इट हैज ग्रोन एंड ग्रोन. तो रादर देन फोकसिंग प्योरली ऑन टू योर फाइनेंशियल सर्विसेज, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर आईटी सर्विसेज. तो वो आप आईटी की उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के ऊपर बहुत ज्यादा बैंक के जो लोग हैं वो अपना टाइम लगा. एंड देन it's not easy for everyone to own a data center. ठीक है, it's hard. Wow. और सिर्फ जो इसीलिए ज़्यादातर बड़ी लार्ज स्केल कंपनीज हैं वो तो उसको कर लेती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैव अ डेटा सेंटर. यस, एक चीज आपने देखी होगी कि एक छोटे से भी कोई कंपनी है और उसने एक सर्वर रखा हुआ है एक रूम में बड़े साइज का, तो दे स्टार्ट सेइंग दैट server room as a data center. That is in with the true definition, with the true concept, it's not a data center. Data center is generally a massive scale place where you are doing a lot of computation. ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा computation. So what can be the solution? So the solution can be that you should outsource data center, क्योंकि resources भी नहीं मिलती, बाकी काम भी नहीं होते, आप अपनी बहुत ज़्यादा energies को focus कर रहे होते हैं उसके ऊपर, core competency को छोड़ के. So what you can do is you can outsource the data center. और जब आप outsource कर देंगे तो वो जो आपकी economies of scale को meet up करना है, ये उसका दर्द है सारा होगा जो आपको जिसको आपने outsource किया होगा. और इसी तरह जब आप स्केल अप कर देंगे, सो यू कैन बी एबल टू अफोर्ड स्पेशलाइज स्किल, क्योंकि वो जो कंपनी जो है वो कोई आईटी कंपनी होगी जो कि आपको डेटा सेंटर की सर्विसेज दे रही होगी, एंड दे वुड बी हैविंग दैट स्किल सेट अवेलेबल. और फिर वो अक्सर जो है वो सिर्फ आपको आउटसोर्स सर्विस नहीं दे रही होती, बाकियों को भी दे रही होती है, तो वो रिसोर्स शेयरिंग होती है. इसी तरह आप अपने कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस कर सकते हैं. सो लेट्स से इफ यू आर अ वेब डेवलपर, तो आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर फोकस करते हैं. देन जब आप आउटसोर्स पे जाते हैं तो लोगों के पास ऑलरेडी ये चीज अवेलेबल है, सो यू डू नॉट नीड टू हैव अ लॉन्ग वेटिंग टाइम कि मेरा डेटा सेंटर बने और मैं इसके ऊपर चीजें मूव करें. जनरली द लीड टाइम्स आर वेरी शॉर्ट. एंड देन वो जो इनफ्लेक्सिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं. आप बड़ी लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के साथ यू कैन आउटसोर्स अ डेटा सेंटर. और इवेंचुअली योर कंप्यूटिंग पावर इट बिकम्स अ कमोडिटी. ठीक है, जिस तरह से पहले की आपकी इलेक्ट्रिक पावर होती थी. सो दिस इज द वन सिनेरियो. द सेकंड सिनेरियो इज दैट वी आर हैविंग अ मैसिव डेटा ग्रोथ. ठीक है, हमारी डेटा ग्रोथ जो है इट्स अ लॉट,
और वो कैसे? Because like I told you before, we are living in a digital world where we are producing a lot of data. जो भी हम इस वक्त काम कर रहे होते हैं, that is being actually converted into bits and bytes and transmitted over the internet, and we are doing a lot of stuff with that. A typical example could be what we are doing right now. So your teaching पहले interactively होती थी while sitting in a classroom, but today we are doing it over the internet. ठीक है? So whatever I am speaking to you, it's been converted into bits and bytes और आप तक वो transfer हो रहा है. ठीक है? जबकि इन ट्रेडिशनल मॉडल ऐसा नहीं था, तो अब और ये कन्वर्जेंस बड़ी तेजी से हो रही है, लेकिन अब इस डेटा के साथ एक प्रॉब्लम है, बिकॉज इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा, द डेटा वी आर प्रोड्यूसिंग इट्स अ लॉट. तो हमें जो है वो डेटा जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. Again, this infographic is a bit old, 5 6 years old. Even at that time, what was happening in an internet minute was uh, that we were having about 20 new victims of identity theft every time. 3,000 photos were uploaded onto Flickr at that time. Over 100,000 new tweets in a minute, and 6 million Facebook views in a minute, 277,000 logins. So we are doing a lot of activity. So the purpose is it was happening at that time. And now we should make it at least 3 to 4 times. ठीक है, 3 से 4 गुना कम से कम जो है वो अब इससे ज्यादा हो रही है चीजें. तो 2018 की अगर हम बात करें तो द अमाउंट ऑफ डेटा दैट वाज क्रिएटेड इन 2018 वाज 33 zettabyte. ठीक है जी. और zettabyte कितना होता है? zettabyte तो वो नीचे आपको उसके लिए एक रेफरेंस के लिए दे दिया गया है. सो अभी आप जनरली जो यूज करते हैं, मैक्सिमम यू आर यूजिंग टेराबाइट, व्हिच इज 10 पावर 12 और 2 पावर 40. ठीक है, तो वो 2 पावर 40 में जनरली आप कर रहे होते हैं. देन पेटाबाइट, देन एक्साबाइट, एंड देन zettabyte, एंड देन कम्स द योटाबाइट. ठीक है, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एरा ऑफ योटाबाइट. तो इस वक्त ज्यादातर जो हमारा काम है वो zettabyte के अंदर. ठीक है, तो 2018 में 33 zettabyte का था, तो नाउ इट वुड बी इवन मच मोर देन दैट. ठीक है, और so worldwide amount of data that is going to be created per year, if you see that, so in 2018 it was around 33. 2020 की जो sorry anticipation थी, that was 47 zettabyte. ये काफी आती थी कि they will be around this. But interestingly, it would be probably more because ये जो COVID वाला आपका आया है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये data generation और ज्यादा हो. By 2025, you can see it will grow to 175, and in 2035, it will be 2 yottabyte. ठीक है, और 2142 zettabyte. ठीक है, तो you can see a lot of data is actually going to be generated. ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो डेटा है वो आपका प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है जी. If we talk about another infographic is there, a day in data. तो एक दिन के अंदर आप कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं. So this is another figure. I'm not going into detail. But essence क्या है? Essence ये है कि we are having a problem of big data generation. ठीक है, जिसको big data आप कहते रहते हैं. So big data is what? Because we are producing a lot of data, so it's creating a problem for us, which is termed as big data problem. और बिग डेटा का प्रॉब्लम क्या है? बिग डेटा का प्रॉब्लम ये है कि बिग डेटा is needed to be stored, but not only needed to be stored, it needed to be processed. तो प्रोसेस जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम है. ठीक है, स्टोरेज के लिए आपको डिवाइसेस भी ज्यादा चाहिए होंगी, ज्यादा स्पेसेस चाहिए होंगे. यू मे बी एबल टू स्पेंड सम टाइम ऑन टू दैट और सम मोर मनी, और आप उसके ऊपर वो कर लेंगे. लेकिन द मेजर प्रॉब्लम इज with the processing of big data. Big data processing is a big challenge. तो जितना आपका डेटा ज्यादा होगा, प्रोसेसिंग उतनी ज्यादा होगी. ठीक है,
इसकी typical example देते हैं. Let's say you want to fetch or you want to search on YouTube for a video. ठीक है. अब वो वीडियो अगर बहुत ज्यादा बार बार अपलोड हुई होगी तो क्या होगा कि आपकी जो सर्च है वो ज्यादा एक्सटेंडेड जाएगी. ठीक है. वो ज्यादा डेटा के ऊपर जाएगी. जितना ज्यादा डेटा के ऊपर जाएगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. सो फॉर दिस रीजन जो है आपका बिग डेटा प्रोसेसिंग जो है दैट क्रिएट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. ठीक है. तो इसलिए जो है cloud can be a good stuff for that. Another scenario is we are having variety of devices or technologies around us. ठीक है. तो अगर हम देखें, as you might have seen these type of stick based computers like Intel Compute Stick, Google Chromecast, you must have seen Raspberry Pi, which is a single board computers. Then different types of computing devices are there in your life. If we talk about traditional computing device, so you do have laptops, you may have a desktop in your office, then you use the mobile phones, you do have the tabs as well, you have book readers. So variety of devices are there. Then we are having home appliances which are now connected. Pakistan may be have connected home appliances are here. Then you have desktops. Then you have consumer electronics, different types of consumer electronics like your TVs. They are connected. You're having, you can have a Blu-ray player which is connected, and so many other things. And then you have gaming consoles. तो वो तो काफी ज़्यादा आजकल जो बच्चे हैं, they are really interesting. So this is almost a computer on used for gaming purpose. Like you can have a Nintendo Wii, Xbox, or a PlayStation, or any other gaming console. And then you can have car computers. So car maybe you generally have at least two computers. One is the ECU, और जो दूसरा है वो आपका मल्टीमीडिया कंप्यूटर होता है जो कि सिंपल आपका जो मल्टीमीडिया को प्ले कर रहा होता है. और cars जो हैं they are getting connected and connected with the internet as well. जो नई कंप्यूटिंग डिवाइसेस जिस तरफ हम जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं, इनमें से काफ़ी सारे तो हो चुकी हैं. Like we are having now the glass as well. Like this is a picture from the Google Glass. Then we are having different types of displays, and we are going to have an holograms as well. तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती जा रही है डिवाइसेस में. तो प्रॉब्लम एंड चैलेंज क्या है इस सारे में? Where to store this thing, where to store our data, how to sync this data, how the interfaces are going to be. Because if the interfaces are going to be different, we are going to have problem with the communication. तो फिर वो communication का भी problem होता है. ठीक है. So interfaces are the standard, or what sort of interfaces we are having. Then, so I open this scenario. Then the scenario 4 is transformation from innovation to services. So ये एक और बड़ा real life में इस तरह का एक चीज होती है, in which we generally transform the innovation to products, the goods, and then to the services. So in our lives, this happen quite often that the humans, they do innovate, they come up with some new innovation, which is being converted into a product, and eventually that product becomes a service. तो फिर वो एक सर्विस में कन्वर्ट हो जाती है. So example, in the early days, we got some innovative methods and we started bringing some water. तो वो पानी लाया करते थे. ठीक है. और पानी लाते थे. और कहाँ से लाते थे? It was from far places. तो वो पानी लाया जाता था. That becomes a product. तो वो सप्लाई किया जाता था. मास्की बल्कि हुआ करते थे, और मास्की जो they were used to provide this water to you, और वो भर के लाया करते थे और आपको सप्लाई कर देते थे. Then eventually it evolved, और वो मास्की खत्म हो गए, and you get a continuous supply in form of a service through a dedicated connection. ठीक है. This is how we get the water now. Similarly, transformation from product to service में electricity की example है. We got the innovation. So we saw, okay, yes, electricity can be there. So we started having some sort of products जिनके through जो localized
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी इन दी अर्ली डेज, एक दो सेंचुरी पहले, और वो वहीं पे एक्सेसिबल होती थी. देन इट बिकम्स अ सर्विस. तो वो नेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर कैन बी देयर एज वेल. So they produce the energy, convert it into electricity, and that electricity is been transferred to you via electricity grids at your doorstep. ठीक है, तो आपके घर तक आपको वो सर्विस आती है. So again, innovation से product में convert हुई and then to the service. Similarly, if we talk about the banking service, तो banking service जो है वो भी इसी तरह थी. Early days में the people they were used to have money, so there were no banks, so they have to take care of their money own. ठीक है, खुद से अपना उस मनी का ख्याल रखते थे. तो चाहे वो जो है बेड के नीचे छुपाया हुआ है या किसी सेफ में रखा है या कहीं भी रखा है, they were used to do it their own. तो फिर यूरोप से स्टार्ट हुआ, ये बैंक का कॉन्सेप्ट आ गया और दे स्टार्टेड लैंडिंग मनी एज वेल. तो आप अपना मनी जो बैंक में दे देते थे फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और बैंक जो है वो अपने पास उसको रखता था. फिर इसमें एडवांसमेंट काफ़ी, एंड देन वी गॉट द बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स. तो वो चेक्स का कॉन्सेप्ट आ गया, बट दे वर ऑल प्रोडक्ट्स. सामान जाते थे बैंक में डील करते थे. बट अगेन नाउ दैट इज बिकम टू मच सर्विस ओरिएंटेड. ठीक है, तो वो जो बैंकिंग है वो हमारे सारा का सारा आईटी बेस्ड हो गई, और आप आईटी में हम घर बैठे हुए उसको एज अ सर्विस कर रहे थे. तो पहले वो बैंक जाना करना वो सारा होता था. सो नाउ इट्स अवेलेबल एवरीवेयर. तो यूज दिस सर्विस एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम. आप किसी भी वक्त बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर सकते हैं. Similar is for the computing. Computing has evolved. तो आपके अर्ली डेज में यू वुड डू द कंप्यूटेशन ऑन पेपर. तो पहली इनोवेशन यही थी कि अच्छा ओके डू द कंप्यूटेशन बट पेपर पे करें. इससे पहले भी मेथड्स हुआ करते थे. यू मे बी काउंटिंग इट ऑन टू द पेबल्स या किसी ऐसी चीज पे करते थे, और फिर देन ऑन पेपर. देन वी केम अप विद द प्रोडक्ट्स. अगेन ये प्रोडक्ट्स जरा मॉडर्न शक्ल की यहाँ पे पिक्चर लगा दी है, बट वी वर यूज्ड टू हैव वेरी ओल्ड स्कूल मैकेनिकल कैलकुलेटर्स भी हुआ करते थे. तो वो प्रोडक्ट मजीद मॉडर्न होके वो ये इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स बने, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आ गए. देन दीज प्रोडक्ट दे बिकम मोर पावरफुल. तो इसके अंदर एवोल्यूशन बहुत ज्यादा हुई, बहुत तरक्की हुई. बट इवेंचुअली all these products they become a service. अब rather than buying those products, we actually go for buying the services. ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल होता है? Actually it's been done through cloud computing. ठीक है, तो ये भी वही वाला सिनेरियो है. तो कंप्यूटिंग एज अ सर्विस का कॉन्सेप्ट आ गया. हमने इनोवेट किया, आईटी प्रोडक्ट्स बनाई, बड़ी कॉम्प्लेक्स बना दी, बट इवेंचुअली वी एंडेड अप विद सर्विस कंप्यूटिंग. ठीक है, तो हम ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज ले लेते हैं और उसके ऊपर पे एज यू गो मॉडल अप्लाई. द लास्ट सिनेरियो इज डिमांड ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड. दिस इज वेरी क्रिटिकल because the way the world is changing every day, it's bringing newer and newer demands. और इसमें जो है if you see there are many aspects. ठीक है, number one is explosive growth in applications. हमारी जो applications हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा explosive growth है in terms of in both terms. Number one, application areas. हम नए से नए areas में जो है वो applications को ला रहे हैं. Like आज से 8-10 साल पहले हेल्थ रेटिंग सर्विसेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बट देन उबर केम इन द वर्ल्ड, हेल्थ रेटिंग सर्विसेज आ गई, और आज दे आर अ बिग एप्लीकेशन एरिया. And there are so many other examples. The other aspect is within the existing applications, we are bringing and coming up with many new features. तो नए से नए फीचर्स हम लेके आ रहे हैं, नई चैलेंजेस, नई चीज़ों के साथ जो है हम जो है अपने एप्लीकेशंस को रिलीज कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीम स्केल कंटेंट जनरेशन. तो हमारा जो कंटेंट है वो भी एक्सट्रीम स्केल है. हमारा बहुत ज्यादा लेवल का जो है वो कंटेंट जनरेट होता है. एग्जांपल ये कि पहले हमारा जो नॉलेज था ह्यूमंस का, इट वाज लिमिटेड. इट्स एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग. तो जितना ज्यादा है इतना ही स्केल भी बढ़ रहा है.
जैसे अगर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करते थे, so we were used to have a very limited sight. But now we talk about in millions of light years distances. ठीक है, तो उसके लिए आपका जो कंटेंट है वो भी बड़ा हो रहा है. इसी तरह जो कंटेंट कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रही है वो भी बढ़ा है. फॉर एग्जांपल, आज से आप 10-15 साल पहले जब पिक्चर लेते थे तो 5 मेगा पिक्सल की होती थी. आज आप वही सेम पिक्चर लेते हैं, इफ यू कैप्चर वन फ्रेम, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, बिकॉज यू टेक इट विद अ वेरी हाई साइज ऑफ कैमरा अपर्चर. आप बड़े साइज के उसके कैमरा लेंस के साथ लेते हैं, जिसके जो डिजिटल कन्वर्जन है इनटू इन टर्म्स ऑफ मेगा पिक्सल वो काफी ज्यादा होता है. 30 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, तो वो साइज उससे भी ज्यादा आता है. Similarly, we do have extraordinary rate of digital content consumption. We produce a lot of data and we consume a lot of data. तो दोनों काम जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं. और we are spending almost half of our time on digital devices. Similarly, there is a huge exponential growth in computing capabilities as well. तो पहले हमारे सिंगल कोर आर्किटेक्चर्स होते थे. राइट नाउ वी आर हैविंग मल्टी कोर आर्किटेक्चर. स्टोरेजेस में नई टेक्नोलॉजीज आ गई, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, बैंडविड्थ्स बढ़ गई हैं. वी आर हैविंग वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट, वी आर हैविंग क्यूबरनेटिस कॉन्सेप्ट, वी हैव सो मेनी न्यू टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट अवेलेबल. वेरी शॉर्ट साइकिल ऑफ ऑब्सोलेंस इन टेक्नोलॉजीज, ये बड़ा क्रिटिकल हो. पहले जो था कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, आईटी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, जो ऑब्सोलेंस साइकिल था दैट वाज शॉर्ट. जनरली इट वाज यूज्ड टू बी 18 मंथ्स. 1.5 साल में चीज जो है वो ऑब्सोलीट होने शुरू हो जाती थी एंड यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज एंड न्यू टेक्नोलॉजी. बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज आपका ऑब्सोलेंस साइकिल और शॉर्ट हो गया. That is one of the reasons. That's why the companies they have to come up with the new releases after every 5-6 months, which are software product, even hardware product के अंदर. If you see, तो एटलीस्ट साल के अंदर वो नया वर्जन, नया प्रोडक्ट लेके आ रही होती हैं. लेट्स से यू टॉक अबाउट द मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन के अंदर भी आप देखते हैं हर साल जो है सैमसंग भी अपना एक फ्लैगशिप मोबाइल लेके आता है, एप्पल भी लेके आ रहा होता है, सिमिलर फॉर द अदर कंपनीज एज वेल. Then newer software architectures as well. नए software architectures भी आ गए, hardware architectures भी आ गए. Like we have web services concept, we have newer persistency models, we have new types of distributed systems, particularly the file systems. We are in the multi-core era. So चीजें जो हैं they have become too much wireless. So we have a lot of newer concepts there. Mobility is there, so it's not only wirelessly connected but mobility is there, where we get connected from one hop to another hop as well. ये बहुत सारी चीजें हैं. Then diverse knowledge and skill level of the workforce, ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है. पहले कंप्यूटर साइंस का बंदा जो कंप्यूटर साइंस स्पेशलिस्ट होता था, but now he is a specialist in one of the domain. He's a cloud computing specialist, he's a data science specialist, he's a software architecture specialist, he's a requirement engineering specialist or something, or a database specialist. तो बहुत ज़्यादा diversified knowledge. Even database specialist है तो one may be an RDBMS based specialist, the other one can be a NoSQL based specialist. तो ये बड़ी बहुत ज़्यादा variety हो चुकी है और it has become too much challenging. So you simply cannot manage this complex situation with your traditional IT infrastructure. So let's say you are a company and you are running some sort of a services, and the requirements in growing, and now you come up with a small scale, let's say data center. लेकिन उस data center के अंदर अब क्या है, you are running your own application, so you are going to have the infrastructure people and the software people with too much variety. ठीक है, तो आपको एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर चाहिए होगा. यू आर गोइंग टू हैव रिक्वायरमेंट फॉर iOS based developer, Android developer, web developer, traditional software developer. So it is too much complex. So it becomes too much complex to manage this situation with your traditional IT infrastructure. So we have actually put in front of you these 5 scenarios. The number one was outsourced data center.
The second one was there is a massive data growth, so the big data problem is there. Then variety of devices and are there, so that the communication and interfacing is a big challenge. Then uh, we have transformation to from innovation to services model, जहाँ पे हमने देखा कि जी most of the time the things they get transferred from innovation into services. And then lastly, we saw that there's a huge demand of the changing world, and they are really disruptive. ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी massive demands. So what is the solution? Solution is cloud computing. ठीक है जी, cloud computing is a good solution if we want to solve these challenges. So cloud computing है क्या? It's the delivery of computing as a service. ठीक है, आपके जो computational resources हैं उनको as a services दें. वो कंप्यूटर के कोई भी resources हो सकती हैं. Typically they are processing resources, and along with that we can have storage resources, we can have network resources, we can have platform based resources like databases, आपका servers हो सकते हैं, आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं, टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं, देन वी कैन हैव एप्लीकेशंस available as well, then we can have raw computing services available as well. So variety of types of computing services हो सकती हैं जो कि यूजर्स को अवेलेबल होंगी. And these services are being offered by some third party who actually has a model in which these services are being shared among multiple users. तो वो shared services होती हैं जो multiple users के बीच में होती हैं, और ये यूजर जो इन सर्विसेज को शेयर कर लेते हैं और वो यूजर को अवेलेबल हो जाती है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है क्लाउड कंप्यूटिंग की कि ये सर्विसेज जो दे नीड टू बी मीटर्ड, whether they are going to be billed or not. They may be free or they may not be free. Whatever the scenario is, they need to be metered as well, so that you need to have the stats, how much services are being used and who is using, and where they are being used. So ये सारी stats के लिए you use it, and they are available over a network. So you use them over a network. Typically, whenever we term cloud, we generally refer mostly to the public cloud, जो कि publicly available होता है, like Amazon है, Google है, Microsoft Azure है, Rackspace है, or any cloud services which is available. So they are available over an internet network. ठीक है, internet के ऊपर, worldwide stack के ऊपर. Otherwise, you can have a private cloud as well, which is available over your local area network. So cloud computing is actually pay as you go model. So jitna aap use karenge, you are going to pay for that. And as of today, 2020, I have taught this course before as well. This is the first time when I was teaching. These type of concepts were a bit difficult to deliver because at that time cloud bada naya naya tha. But now cloud is widely being used. All of you already have some sort of a familiarity कि जी actually cloud होता क्या है, किस तरह की services देता है, या at least कुछ basic level का idea जरूर है. और so all of you know कि cloud की जो एक बड़ी major characteristic है वो क्या है? It's a service based computing. So you take the computing services from the cloud, you get it from the cloud service provider, and against that you may be paying him. और जब पेमेंट आप करते हैं, no, it's not necessarily like आप गूगल की बेशुमार सर्विसेज यूज करते हैं जो कि पेड नहीं है, और so you do not pay. But whenever you are paying, generally it pays you go कि जितना आप कंज्यूम करते हैं, यू पे ओनली फॉर दैट. ठीक है, वो कंजम्पशन फिर डिपेंड करेगी आपके सर्विस मॉडल पे, बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो कि 3-4 मेजर लेयर्स में डिवाइड होती है. तो डिपेंड करेगा सर्विस पे. लेट्स से इफ यू ऑप्ट फॉर कंप्यूटेशनल सर्विसेज, आप प्रोसेसर ले लें, प्रोसेसिंग रिसोर्सेज ले लें, और एक रिमोट मशीन ले लें. तो वो जो रिमोट मशीन है जनरली इट्स बीन बिल्ड पर आवर. ठीक है, इस वक्त वो पर मिनट भी करते हैं कुछ, तो जनरली बीन बिल्ड पर आवर. स्टोरेज सर्विसेज लेते हैं तो दे आर बिल्ड पर मंथ और पर ईयर. ठीक है, तो वो चूंकि लॉन्ग टर्म की होती है, you generally do not hire a storage resource, or you do not rent a storage resource for 30 minutes or for 1.5 hours. Generally you take it for a long period of time. और जो computational resources हैं, they may be for a shorter period of time. So if you need it for today, let's say for the evening, you may get it. और इसलिए उसकी बिलिंग डिफरेंट है, और जो स्टोरेज रिसोर्स है उसकी डिफरेंट है. इफ यू टॉक अबाउट द नेटवर्क रिसोर्स, you might be talking about the bandwidth. So the bandwidth consumed, you may be billed for that. So the bandwidth is again a recurring. So it's the total quantity. बेशक आज के दिन में 1 घंटे में
10 दिनों में, 1 महीने में, whatever bandwidth you are using, you're going to be billed for that. So इसलिए हर सर्विस टाइप पे डिपेंड करेगा कि उसकी पेज यू गो मॉडल क्या है, तो ये डिफरेंट होता है. Or whenever you are using a public cloud model, it's quite similar like you are renting a property rather than owning it. So अगर आपने अपना घर बनाना है या घर परचेज करना है, you're going to need a lot of upfront money definitely. So and it's not very easy. So and फिर क्या होता है, जैसे एक बिजनेसमैन का भी माइंडसेट होगा था कि rather than putting a lot of money into buying a home, आपने देखा कि बहुत सारे बिजनेसमैन अपना घर ही नहीं लेते. वो कहते हैं because why I should be buying my home rather than I should be investing this money into some business. पाकिस्तान में प्रॉपर्टी एक अच्छा बिजनेस बन गया था somehow, तो रिटर्न्स बेहतर थे, अदरवाइज इस तरह नहीं होते. तो इट हैज बीन अ वेरी कॉमन ट्रेंड इन द 90s इन अर्ली 2000 और 80s में भी होता था कि बिजनेसमैन अक्सर जो अगर परचेज करने की बजाय वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे. So similar is for cloud. So rather than putting a lot of money or doing a big huge capital investment upfront, आप उसको बचा लेते हैं और रेगुलरली पे करते जाते हैं जितनी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, दे कैन हैव अ पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड. दोनों में फर्क क्या आता है? पब्लिक क्लाउड जो थर्ड पार्टी का होता है, जो थर्ड पार्टी आपको ऑफर करती है, एंड द प्राइवेट क्लाउड इज टिपिकली योर ओन क्लाउड, जिसके आप खुद ओनर होते हैं. यू जस्ट convert it into a form in which the things they are being offered as a service. So you say it's a private cloud. वो जो पहले भी आप सर्विसेज देते थे, you make them more cloud oriented, उनकी शेपिंग करते हैं, तो so it becomes a private cloud. You can also think it as internet computing, because generally, particularly to the public cloud, because we do the computation over the internet, so you can say it internet computing. So cloud computing, as we said before, it's the transformation of IT from a product to the service. जो चीजें हम पहले as a product purchase करते थे, and we were used to put a lot of capital investment onto those things. Now, rather than doing those huge capital investments, we start renting those things as a service. तो वो हम rent करते हैं और as a service कर लेते हैं. अब क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? इट्स द amalgamation of so many different technologies, many particularly enabling technologies, जिनकी मदद से क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो हम करते हैं. इसमें yes, internet is one of the core technology through which we actually access our services over the internet. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि अब गूगल का, यू मस्ट बी नोइंग कि देयर आर अ लॉट ऑफ डेटा सेंटर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो गूगल ने क्या किया है कि जब इस डेटा सेंटर से आप सर्विसेज एक्सेस करते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है आप करीबी से करना चाहते हैं, आप यूएस वाले से करना चाहते हैं, यू वांट टू हैव इट फ्रॉम जापान, फ्रॉम सिंगापुर, फ्रॉम इंडिया, जहां से भी करना चाहते हैं, यू कैन एक्सेस दो सर्विसेज. सो यू एक्चुअली एक्सेस इट थ्रू द इंटरनेट. लेकिन गूगल ने ये किया है कि उस वो अपनी बैकबोन के अंदर इंटरनेट को यूज नहीं करता. इंटरनेट कस्टमर से सिर्फ गूगल के एंट्री पॉइंट में यूज होता है. वी विल हैव अ स्टडी ऑफ द गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इज वेल लेटर ऑन इन दिस कोर्स, और उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे क्विक लैब के ऊपर और गूगल लैब्स के ऊपर. वो हम सर्विसेज एक्वायर भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है ना सर्विसेज लेते हैं. यू विल सी दैट एट दैट टाइम. लेकिन उसमें मेन चीज जो है वो गूगल ने क्या किया, उसने planet, they say it planet scale network, so they have their own planet scale network. पूरी अर्थ में उन्होंने ऑल अक्रॉस द अर्थ उन्होंने अपना एक इंटरनेटवर्क बनाया है जो कि उनके तमाम डेटा सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करता है. सो गूगल हैव दिस थिंग. तो एक बार आप गूगल के नेटवर्क पे आ जाएं, एंड इफ यू हैव होस्टेड सम सर्विसेज इन यू, आप यूएस में, और दूसरी आपने जापान में रखी हुई है, तो एक बार जब आप यूएस में चले गए और वहां से आगे आप स्टोरेज सर्विस ले रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सेस थ्रू इंटरनेट. वो फिर आपस में कम्युनिकेशन जो है उनकी गूगल के अपने प्लैनेट नेटवर्क के ऊपर, प्लैनेट स्केल नेटवर्क के ऊपर. So, but still, to access the Google services upfront, you are going to need the internet. Then Web3 is there, so you have all the components of the Web3. Then, yes, the cloud is based on the parallel and distributed computing, जो कोर कॉन्सेप्ट हैं उसके, और उनकी बेसिस पे आपको पता है उसका जो evolved मॉडल था, that was grid computing. यस सर, वो Distributed टेलीकम्युनिकेशन का system जिक्र किया था is a मैंने. system which appears to user as one system, जिसमें हम मल्टीपल फिजिकल सिस्टम्स को लेयर्स के थ्रू इस तरह कंबाइन कर देते हैं कि यूजर के लिए वो एक सिस्टम बन जाता है, वो अलग सिस्टम नहीं होता. So that is called a distributed system.
और उसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे जब हम पैरेलल कंप्यूटेशन करते हैं, वी डिवाइड एन एप्लीकेशन और उसको उसके थ्रेड बना के उसे मल्टीपल प्रोसेसर पे या मल्टीपल कोर्स पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ पैरेलल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो बड़ा फेमस पुराना ओल्ड मॉडल है। इसी की इवॉल्व फॉर्म थी, दैट वाज ग्रेट कंप्यूटिंग। ग्रेट कंप्यूटिंग वाज के आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन एक है और मल्टीपल क्लस्टर, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मिला के आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में डाल देते थे, और दैट वाज टर्म्ड एज ग्रेट कंप्यूटिंग। अब उसी की मजीद एडवांस फॉर्म जो दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इवॉल्व फ्रॉम द ग्रेट कंप्यूटिंग। अच्छा, आपका एक जी थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी की जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल। ग्रेट कंप्यूटिंग जो है वो इवॉल्व होकर फिर आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई। क्लाउड कंप्यूटिंग में अब ये चीजें नहीं, थर्ड पार्टी के पास चली। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज ए लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, ये जो मल्टीपल हैं इनको यूज करते हुए इट गिव्स यू सर्विसेज। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ग्रेड में कम ही था, क्यों ग्रेड में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस ज्यादा थी चीजें। क्लाउड में क्या करते हैं, वी यूज वर्चुअलाइजेशन बाय लार्ज। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन बहुत ज्यादा यूज होती है, एसेंशियल नहीं है लेकिन तकरीबन सारे यूज करते हैं, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन से द थिंग्स दे बिकम वेरी वेरी इजी। और यहाँ पे जो भी वर्चुअलाइजेशन की हम बात करते हैं या क्लाउड में खास तौर से, तो इसमें सबसे कॉमनली जो वर्चुअलाइजेशन की बात होती है, यू कैन हैव इट मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, जो लेकिन यहाँ पे बात होती है दैट इज एक्चुअली मशीन वर्चुअलाइजेशन, जो आपकी फिजिकल मशीन की आप करते हैं। तो उसी की हम ज्यादा कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी आपकी स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन भी हो सकती है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन भी हो सकती है। सो यू कैन हैव मल्टीपल टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। जैसे वीपीएन भी यूज हो रहे होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल इज व्हाट वर्चुअल बाय डेफिनेशन ही, वर्चुअल का मतलब क्या है, समथिंग विच इज नॉट रियल, जो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती, बट इट गिव्स यू एन इल्यूजन ऑफ समथिंग, आपको इल्यूजन देती है किसी चीज की। कि जैसे मशीन नहीं है बट इट गिव्स यू कि जी आपके पास एक वर्चुअल मशीन मौजूद है। इसी तरह नेटवर्क एक्चुअल में फिजिकल अलहदा नहीं है, बट इट गिव्स यू कि एक सेपरेट मेरा जो है ना नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क मेरा अवेलेबल है, वीपीएन गिव्स यू दैट इल्यूजन। मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी आपने देखा है, तो वो फिजिकल मेमोरी आपकी थोड़ी सी लगी होती है, बट आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन चलाते हैं, आप 20 GB की भी एप्लीकेशन चला देते हैं ऑन टू 4 GB मेमोरी। क्यों? बिकॉज इट गिव्स यू एन इल्यूजन के इंटेल के ऊपर मेरी 64 TB की मेमोरी है, जबकि लगी हुई 4-8 GB होती है। और सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। सो वर्चुअलाइजेशन के साथ मिलके बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो क्लाउड के अंदर हम यूज करते हैं। सो विद ग्रेट को आपने वर्चुअलाइज किया एंड यू कम अप विद मेनी अदर कॉन्सेप्ट, सो इट गिव्स यू क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग बेसिकली गिव्स यू दिस आइडिया कि अच्छा जी, एज ए यूटिलिटी अवेलेबल हो जाए सर्विसेज, मीन्स कि जी थर्ड पार्टी को अवेलेबल हो जाए, कोई भी सर्विस के तौर पे ले ले, सर्विस कंप्यूटिंग या यूटिलिटी कंप्यूटिंग के तौर पे। Then you have variety of storage technologies which are there, और डिफरेंट किस्म की स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हैं। आप अभी तक ज्यादातर जो यूज करते हैं स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, आप यूज करते हैं जो ब्लॉक स्टोरेजेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क हैं। इवन आप जो नेटवर्क पे भी यूज करते हैं, आप बहुत ज्यादा जो जो लार्ज स्केल पे भी काम कर रहे हैं एंटरप्राइज पे, बहुत ज्यादा स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में ब्लॉक स्टोरेजेस यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी हैं, जैसे ऑब्जेक्ट स्टोरेज एक बड़ी कॉमन है, तो क्लाउड के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी यूज होती है। देन फॉल्ट टॉलरेंस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। आप अपने सिस्टम्स, अपने भी बड़े लार्ज स्केल सिस्टम्स पे करते हैं, जैसे आप बैंक के या कोई भी कंपनी है, तो व्हाट यू डू इज यू डू रेप्लिकेशन, आप रेप्लिकास बनाते हैं, सो दैट इफ समथिंग फेल्स इट डज नॉट फेल होल ऑफ द सिस्टम, तो ताकि फेलियर्स ना हो, बैकअप्स रखते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। बट ऑन क्लाउड दिस इज रियली इसेंशियल, और ये आपको थर्ड पार्टी दे रही है। और प्रोग्रामिंग मॉडल्स, यू कैन हैव वैरायटी ऑफ, आपके नए नए प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स आ गई हैं, ये गो, ये एग्जिस्टिंग में पर्ल आप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। फिर नए प्रोग्रामिंग मॉडल्स जो खास तौर से जैसे बिग डेटा के आ गए, हडूप मैप रिड्यूस है, स्पार्क है, बेशुमार आपके नए प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं जो कि आ गए फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कि मिलके इनेबल करती हैं एंड यू कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड। ठीक है, अब इनमें से एक जरूरी नहीं है कि हर चीज ही होगी। ठीक है, बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वाला है कि अच्छा कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, वो क्लस्टर्स हों, कुछ सर्वर्स हों, एंड देन ओके कुछ ग्रेड कंप्यूटिंग का है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग, यस, द थिंग्स दे शुड बी अवेलेबल एज अ यूटिलिटी। देन वेब 3 मे बी देयर, इंटरनेट अगेन मे बी देयर, इफ यू आर यूजिंग पब्लिक क्लाउड, यस इट्स गोइंग टू बी थ्रू इंटरनेट। प्राइवेट है तो तब भी हम इसे क्लाउड कह ही रहे होते हैं।
लेकिन इट्स सो मच एसेंशियल, क्यों? क्योंकि हम जनरली जब भी क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड का जो असल ट्रू सेंस मिलता है वो हमें पब्लिक क्लाउड के साथ ही मिल रहा होता है कि भाई हमने किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो मेजर काम है, मेजर जो सबसे अगर मैं इसे समराइज्ड और सादा लफ्जों में कह दूं तो दैट इज व्हाट, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल दी। ठीक है, आपने थर्ड पार्टी के ऊपर वो काम डाल दिया, आपने आउटसोर्स कर दिया। तो वो सारे जो उसकी मुश्किलात हैं, सारी चीजें, एंड अगेंस्ट दैट यू आर गोइंग टू पे सम प्रीमियम। ठीक है, वो आप उसे पे करते हैं। और इसी तरह वर्चुअलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी बट यू डू इट, इट्स वाइडली बीन यूज। इसके बगैर शायद बड़ा मुश्किल है। वो हम क्योंकि उसकी बात करेंगे कि जी ऑटो स्केल होता है और ये होता है वो होता है, तो वो चीजें वर्चुअलाइजेशन के साथ ही ईजी है, अदरवाइज दे आर वेरी डिफिकल्ट। एंड यस, इट ऑफर्स यू सो मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज, तो स्टोरेज भी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज होती हैं। इसी तरह ये तो बहुत ही इसेंशियल है फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड। सो देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसके बाद ये सारे मिक्स होकर जनाब इवेंचुअली ये सारे का मिक्सचर बनाते हैं एंड यू गेट द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वेरी वेरी डायनेमिक थिंग, वेरी बिग थिंग। तो इट्स अ कंप्यूटिंग एज अ सर्विस रादर देन एज अ प्रोडक्ट, जो हमने पहले ही बात की। तो यहाँ पे होता क्या है क्लाउड में, you can have variety of types of services. So you are going to have servers available, you may have storages available, you can have computer networks available. So typically you are going to have processing resources through servers, you can have storage servers, database servers, data servers, and then you can have applications available as well. जैसे आप क्लाउड की टिपिकल एप्लीकेशन गूगल डॉक पे जाएं, जो डॉक्स हुआ करते थे, अभी आप वैसे जाकर गूगल सर्विसेज ऐप इंजन आप एप्स यूज करते हैं, तो यू डू हैव गूगल की स्प्रेडशीट भी अवेलेबल है, गूगल की पावर पॉइंट की तरह का प्रेजेंटर टूल भी अवेलेबल है, इसी तरह वर्ड प्रोसेसर भी अवेलेबल है। ये तो वो है जो आपको स्पेसिफिकली मेंशन है। बट विद द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, everything whatever you do over the network, internet, that is cloud computing. With the simplest definition, what is the simplest definition? That is computing over the network or computing over the internet is called क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप जो भी सर्विसेज ले रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, वो सारी कंप्यूटिंग है। फॉर एग्जांपल पुराने जमाने की सादी आपकी सर्विस ईमेल, तो आप जो ईमेल चेक करते हैं, ईमेल सर्विसेज ले रहे हैं, यस दैट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो पहले तो हम इसे क्लाउड नहीं कहते थे, तो विद द सिंपलेस्ट डेफिनेशन अब हम कहते हैं जी ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो भी और आप इवन जो इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, आप अपनी बैंक की एप्लीकेशन पे जाके बैंक का आप बैलेंस चेक करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी क्लाउड एप्लीकेशन है। तो लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस में हम उसे चार्ज कर लेते हैं, हम उसे थोड़ा सा सर्विस ओरिएंटेड ज्यादा कर देते हैं, तो उनको हम टिपिकली क्लाउड एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको ग्रेजुअली फिर थोड़े से डिस्टिंक्शन जो है ना ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो जी लेट्स डिस्कस कि जी व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। सबसे मेजर पे एज यू गो मॉडल है। यू डू नॉट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि कभी भी आपने नया सेटअप भी करना है, सो इट्स रियली आइडियली सूटेड फॉर द न्यूबी, नई एंटरप्राइजेस के लिए। और जो इवन एग्जिस्टिंग भी हैं, उन्होंने जब भी नया इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू डू अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जैसे आपकी एग्जिस्टिंग एक फैसिलिटी है कंप्यूटिंग, तो आप उसी में चीजें जो है रिसोर्स बढ़ाते जाते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ी है। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है, देन यू हैव टू बिल्ड अ न्यू फैसिलिटी। तो जब भी नई फैसिलिटी बिल्ड करेंगे, तो जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था, ये नहीं होता कि आपको एक नया कमरा जी मजीद बिल्ड कर लेंगे और करेंगे। आप एक नया डेटा सेंटर या स्मॉल डेटा सेंटर कुछ ना कुछ बनाएंगे, और वो आपकी एटलीस्ट 3 या 4 साल की रिक्वायरमेंट को देख के बनाया जाएगा। जनरली एटलीस्ट 5 साल की देखी जाएगी, तो वो इमीडिएटली आपको उस पर रिटर्न नहीं आना। तो अब जो आप इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो आपकी यूज होती है और उसका रिटर्न आपको आस्ते आस्ते मिलेगा। तो एक ये प्रॉब्लम। और जो नए हैं उनके लिए वैसे ही कोई नया एंटर होना चाह रहा है, कोई नई ये कंपनी फॉरेक्स कंपनी खोलना चाह रहा है, तो फॉरेक्स में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का और सर्वर्स का रोल होता है। तो वो अ, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज यही होगा कि अपनी वो कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करने की बजाय इस पे अपना फोकस भी करेगा और पैसा भी लगाएगा।
सो दिस गिव्स यू एन एडवांटेज कि आपकी रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है क्लाउड के ऊपर। आपको जो है अपफ्रंट बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। और इसी तरह बिकॉज यू कैन फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसी, सो इट गिव्स यू रिड्यूस टाइम टू मार्केट। फिर एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बड़ा होता जाता है उतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सो क्लाउड का फायदा ये कि इट गिव्स यू सिंप्लीफाइड आईटी मैनेजमेंट। आपने बिल्कुल थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी होती है, बाकी जो सारा काम है वो क्लाउड प्रोवाइडर जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो कर रहे होते हैं। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लाउड जो है वो आपको स्केलेबिलिटी देता है कि आपकी जब भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो आप ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं, जब रिक्वायरमेंट कम होगी तो आप कम रिसोर्सेज यूज करते हैं। ये सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है जो स्केलेबिलिटी का क्लाउड के ऊपर होता है। यू कैन स्केल अप एंड यू कैन स्केल डाउन। और ये बड़ा टिपिकल केस है बिकॉज इफ यू लुक एट द यूज केसेस अराउंड यू, in most of the use cases there are generally peak hours and off peak hours, or you may have 3 to 4 different types of usage patterns. For example, uh, आपके जो बैंक्स हैं, बैंक्स का जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर से जिसमें कुछ अर्से पहले तक एक्सटर्नल यूजर तो होता ही कम था, बैंक का अपना इंटरनल ही होता था। तो उसमें मैक्सिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता था दैट वाज ड्यूरिंग 9 to 5, जो बैंक की टाइमिंग है। उसके बाद तो कम यूज होता है, उसके बाद जो यूज होता है रिकॉन्सिलेशन और इस तरह के कामों के लिए। अगेन अभी एक्सटर्नल यूजर भी होता है, तो अगेन एक्सटर्नल यूजर ज्यादा किस टाइम यूज करता है, ज्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग कर रहा है या एटीएम मशीन यूज कर रहा है। तो खासतौर से जब तक एटीएम था तो एटीएम में भी बड़ा लिमिटेड टाइम था कि शायद सुबह 8:30 या 8 बजे से लेके रात 8-9 बजे तक ज्यादा टाइम होता था। अब इंटरनेट बैंकिंग भी है तो अगेन 12 बजे तक ज्यादा यूज होती है और उसके बाद कम होती होगी। रात 2 बजे तक और कम, या 3 के बाद शायद बिल्कुल ना होने के बराबर हो, सुबह 7 बजे तक। तो इस तरीके से पीक, ऑफ पीक या मिड पीक आवर्स होते हैं जो कि आपके एप्लीकेशंस के साथ या जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं तो वो सारे टाइम के लिए लेते हैं, ठीक है। हालांकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता रहा है कि अच्छा जी कुछ को रनिंग में कम कर दें, कुछ बढ़ा दें, लेकिन अगेन यू बॉट दोज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आपकी पीक आवर की रिक्वायरमेंट है लेट्स से 100 मशीन्स के बराबर, तो आप 100 मशीन जरूर लेते हैं। ऑफ पीक में हो सकता है सिर्फ 10 मशीनें चलती हैं, तो बट यू हैव टू बाय 100 मशीन। और जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी नहीं वहाँ पूरे टाइम जनाब सारी मशीन चल रही होती है। जहाँ पे थोड़ी मैनेजमेंट बेहतर है तो वो अपनी मशीन को कुछ को डाउन भी कर देते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, ऑटो ऑफ, जिस तरह वो बूट ऑन लैन का कॉन्सेप्ट है, तो आप वो कुछ भी करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बट जो क्लाउड है, क्लाउड पे फायदा यही है, एक तो आपने ये सारी टेंशन खुद नहीं लेनी। जितनी स्केलिंग आपको चाहिए, जितना आपका वर्कलोड बढ़ेगा एप्लीकेशन पे, उतनी ही वो स्केल अप करेगी। और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्विस मॉडल ये स्केलिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। ये जब हम जो मजीद डेप्थ में जाते जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये विल हैव अ बेटर आइडिया कि अच्छा इस वाले मॉडल में किस तरह होनी है और इस मॉडल में किस तरह होनी है। तो वो थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन वो दर्द सर किसका है, वो क्लाउड का है, ठीक है। वो क्लाउड जो है उसको स्केल, जैसे जो सर्वर बेस्ड मॉडल उनमें सर्वर्स बढ़ाता जाता है, जहां पे यूजर की एक्सेस या यूजेज का है वहां पे यूजर की यूजेज और एक्सेस को बढ़ाता जाता है। तो वो क्लाउड जो है ये सारे काम करके देता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज। और उसमें यही है कि जितनी आपको चाहिए यू आर गोइंग टू रेंट दैट मैनी रिसोर्सेज, और ये ऑटोमेटेड होती हैं, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होती हैं। यू कैन राइट स्क्रिप्ट्स और यू कैन जस्ट डू इट विद सम graphical user interface. So you have an instant scalability that can be towards upside or can be towards downside as well. So आपकी दोनों तरफ हो सकती है, स्केल अप स्केल डाउन दोनों कर सकते हैं। Then an interesting thing is you have flexible options. You have variety of types of options available. आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं। सो यू कैन बंडल देम टुगेदर जैसे मर्जी है चाहें। फिर आपके उनको कॉन्फ़िगर करना बड़ा आसान होता है, मोस्टली चीजें प्री कॉन्फ़िगर्ड आती हैं। अपडेट्स आपको अक्सर नहीं करनी पड़ी होती, पहले से ही अपडेटेड होती हैं चीजें। जैसे अगर आपकी आज आपने एप्लीकेशन यूज की और यूज करके आपने छोड़ दी, आपने लेट से एक गूगल का वर्ड प्रोसेसर ही यूज कर रहे हैं, तो आप आज से जो 6 साल पहले यूज करते थे आज तक आपने उसको अपडेट नहीं किया, बिकॉज इट्स द गूगल हु हैज बीन अपडेटिंग दैट थिंग। वो आपको हर बार अपडेटेड एप्लीकेशन देता है, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट कि आप जब इंटरनेट के थ्रू से फेच करते हैं तो कौन सी एप्लीकेशन आती है। यू एक्चुअली गेट द लेटेस्ट वर्जन।
Whereas in your own desktop environment or your own infrastructure, you have to do these updates yourself. तो आप खुद से करते हैं. और अक्सर केसेस में ये भी होता है कि यू हैव टू पे फॉर दैट एज वेल फॉर दोज अपडेट्स, जबकि क्लाउड के केस में दे गिव यू अपडेटेड सर्विसेज, सो दे आर गोना पे फॉर दैट एंड जनरली दे डू नॉट चार्ज यू फॉर दैट. ये नहीं है कि जो अपडेटेड आ गई तो अब उसके लिए रेट ही बढ़ा दिया. ये बड़ा रेयरली होता है इस तरह का. और सो यू कैन एक्सेस दीज थिंग्स फ्लेक्सिबली. और देन रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज इम्प्रूव्ड. आपको पता है कि आपके जो अपने सर्वर्स होते हैं दे आर जनरली अंडर यूटिलाइज्ड. ऑन एवरेज 18-20% आपके सर्वर टोटल यूज होते हैं, तो बाकी जो उनकी रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो रही होती हैं. एक सिंपल प्रिंसिपल है सर्वर्स की दुनिया का, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सिस्टम्स की दुनिया का, कि यू हैव टू कीप योर सिस्टम एज मच बिजी एज पॉसिबल. ठीक है, तो वो आप इसीलिए आप रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं. तो अगर आपके मैक्सिमम वो बिजी नहीं होगा, कम यूज होती हैं, तो हर बंदा अपने अपने सर्वर यूज कर रहा है, तो वेस्टेज ज्यादा है. So if you go towards the cloud computing, तो क्लाउड क्या फायदा देता है कि मल्टीपल यूजर्स दे कैन यूज द सेम सर्वर्स. पहले अपने अपने परचेज किए थे, अब वो कंबाइंड शेयर्ड सर्वर्स यूज करेंगे. सो एक्चुअली ग्लोबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन हैज बीन इम्प्रूव्ड. दुनिया भर में रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है, बजाय इसके कि हर बंदा अपनी अपनी वो करता रहे, वो एक शेयर्ड सर्वर्स को यूज करता है. एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कार्बन फुटप्रिंट इज डिक्रीज. ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट जब आप शेयर करेंगे रिसोर्सेज को, तो आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो डिक्रीज होगा. अब इसी तरह और बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से होगा. एक शेयर्ड होगा, दूसरा आप क्लाउड बेस्ड स्टोरेज यूज करेंगे तो हर जगह आप स्टोर नहीं कर रहे होंगे. और कार्बन फुटप्रिंट आपको पता है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे हम ग्रीन कंप्यूटिंग कहते हैं. यू नीड टू गो फॉर द ग्रीन कंप्यूटिंग, जिसमें आपकी जो एनर्जी वेस्टेज है वो कम से कम हो, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त एनर्जी जो है वो ज्यादातर रीयूजेबल एनर्जी रिसोर्सेज से आती है. ठीक है, वो कंज्यूमेबल होती है, सॉरी रीयूजेबल कह रहा हूँ, कंज्यूमेबल एनर्जी रिसोर्सेज से आती है, रीयूजेबल से नहीं आती. ठीक है, जैसे चाहे कोल है, चाहे पेट्रोलियम बहुत ज्यादा यूज होता है, और रीयूजेबल बहुत कम है, लाइक सनलाइट है या विंड पावर है या आपकी वाटर बेस्ड है, वो कम है. तो जो ये वाली हैं ज्यादातर, चाहे आपके जो फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड है. सर आप ये ग्रीन कंप्यूटिंग भी, सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जी जी. सर, ये ग्रीन कंप्यूटिंग भी क्लाउड कंप्यूटिंग में ही आती है? नहीं नहीं, ग्रीन कंप्यूटिंग एक जनरल कॉन्सेप्ट है, बट यस क्लाउड के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है. क्लाउड के अंदर उसका इशू भी है, और क्लाउड जो है उस इशू को रिजॉल्व करने का जरिया भी है. ठीक है, जैसे ये जो इस वक्त हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हम उसको कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग वी आर गोइंग टू हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग. वी विल गो फॉर ग्रीन कंप्यूटिंग बिकॉज वी आर शेयरिंग रिसोर्सेज. सो इवेंचुअली जो आउटपुट मेजर जो हमें चाहिए वो क्या, ग्रीन कंप्यूटिंग से वन ऑफ द मेजर आउटपुट इज कार्बन फुटप्रिंट नीड टू बी डिक्रीज. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो आपकी जो ऐसी हैजर्डस गैसेज हैं और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसको कम से कम करना है हमें. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग, कि कंप्यूटेशन से उस पर Yes. इम्पैक्ट कम से कम पड़े. तो क्लाउड जो है उसमें बेनिफिट कर रहा है एट दिस पॉइंट. but having a cloud computing and the cloud stuff, you can have a challenge of green computing itself as well. ठीक है, वो कैसे होता है वो एक अलग एस्पेक्ट है. इस वक्त तो चूंकि हम तारीफें कर रहे हैं क्लाउड की, तो हम इसको पॉजिटिव वाले ही सेंस में बात कर रहे हैं. बट क्लाउड हैज इटसेल्फ हैज अ चैलेंज ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग. वो कैसे, वो जैसे डेटा सेंटर है. अब हमने क्या किया, पहले अलग अलग जगह पे कंप्यूटेशन होती थी, लेकिन अब हमने जब सेंट्रलाइज कर दी, एक जगह पे कर दी, तो उस जगह के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया. ठीक है, पहले अगर आपका हर Yes. बंदा अपनी अपनी जगह कंप्यूटिंग करता था और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही थी, तो वो पूरी दुनिया में स्लोली हर जगह. अब एक जगह पे अगर आपने ज्यादा बना दिए डेटा सेंटर्स और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि उस जगह पे ज्यादा डिप्लीशन, क्योंकि आपको पता है ओजोन लेयर जो है उसकी डिप्लीशन हर जगह डिफरेंट है. पाकिस्तान बड़े वल्नरेबल जोन में ज्यादा हो रही है यहाँ पे, तो कुछ जगहों पे कम है, कुछ पे ज्यादा है. तो वो डिप्लीशन जो है वो आपने एक जगह पे ज्यादा कर दी. इसी तरह स्पीशीज का प्रॉब्लम हो जाता है, आपने उस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा रेज कर दिया. क्यों, एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है कंप्यूटिंग का, कंप्यूटिंग जब आप करते हैं तो कंप्यूटिंग से यू एमिट हीट. अब उस हीट को कंट्रोल करना होता है आपने. ठीक है, वो क्यों करना होता है, क्योंकि अदरवाइज यू कैन हैव चिप बर्न्स एंड ऑल दोस थिंग्स.
तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए भी आप फिर उसे डिसिमिनेट करते हैं। तो उसका एक तरीका क्या है, सादा तरीका पुराने टाइम वाला नॉर्मल ऑफिसेज में या उसमें यूज होता था, आपको याद होगा। कहीं और एयर कंडीशनर हो ना हो, इन 90s के ज़माने में ऑफिसेज में एयर कंडीशनिंग हर जगह नहीं होती थी, तो एग्जेक्टिव्स के ऑफिसेज में होते थे और कंप्यूटर वाले ऑफिस में हमेशा एयर कंडीशनर होता था। ठीक है, एयर कंडीशन वाज यूज्ड टू बी देयर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुआ करती थी कि कारपेटिंग ज़रूर होती थी, पता नहीं क्यों होती थी, हालाँकि कारपेट उल्टा आपका डस्ट क्रिएट करती है और कंटेन कराती है। तो वो अपनी तरफ से साफ रखने का, लेकिन ये पता नहीं समा कोई मिथ थी। लेकिन एयर कंडीशनिंग होती थी क्योंकि उस वक़्त ज़्यादा हीट करते थे, और दूसरा आपके मेन फ्रेम या मिनीज़ यूज़ होते थे, तो एक ही जगह पे कंप्यूटिंग डिवाइसेज़ होती थी, एक ही जगह पे। तो उसको कंट्रोल करना पड़ता था। इस वक़्त भी आपने हेवी एयर कंडीशनिंग की होती है जहाँ पे आपने सर्वर्स रखे होते हैं, नॉर्मल में नहीं यूज़ होते। लेकिन नॉर्मल अब वैसे कॉमन हो गई है इन अदर कॉन्टेक्स्ट, वैसे ह्यूमन सेंसिटिव ज़्यादा हो गए हैं तो कॉमन ज़्यादा है। तो वो जो अब हीट है, वो हीट इवेंचुअली आप कहीं तो डिसिपेट करते हैं, क्योंकि नेट एनर्जी तो वो हीट की वो कांस्टेंट है, तो हम उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। जैसे इस वक्त जो है हमारे सिटीज का टेम्परेचर जो है समर में, वो तकरीबन बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनिंग 2 से 3 डिग्री ज्यादा होता है। ठीक है, और मैं इसमें बल्कि वो बात कहता होता हूँ कि हम लोग जो लोग एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं, तो अगर गर्मी की वजह से कोई बेचारा मासूम आदमी मरता है तो उसकी मौत में हम शायद बराबर के शरीक है, बिकॉज वी यूज दीज एयर कंडीशनिंग टू रेज द सिटी टेम्परेचर। अब लाहौर जैसे सिटी में एटलीस्ट 2 से 3, बल्कि इससे ज्यादा इम्पैक्ट है, ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि लाहौर का तो आई हैव विटनेस वंस आई ट्रेवल। तो मैं लाहौर सिटी में थोड़ा सा बाहर करके रहता हूँ, नियर टू द कैंपस। तो यहाँ पे और जो लाहौर मेन सिटी के टेम्परेचर में समर में या इवन नॉर्मल में भी 4 to 5 डिग्री का फर्क होता है। जनरल फिनोमेना 2 डिग्रीज का है, 2 to 3 डिग्रीज। लाहौर में 4 to 5 डिग्रीज का फर्क होता है, विच इज ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। तो अब आप देख लें कि अगर 40 डिग्री हो तो 40 आप बियर कर सकते हैं, लेकिन 45 डिग्री हो जाए, इफ यू डू नॉट हैव एयर कंडीशनिंग तो प्रॉब्लम है। और जिस दिन आपकी मरकरी वैसे ही 43-44 डिग्री पे, तो गरीब के बच्चे को सिटी सेंटर में रह रहा है और ही डज नॉट हैव एयर कंडीशनिंग, तो उसको तो 48-49 की फीलिंग है, तो ही कैन डाई एज वेल। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये वाला इम्पैक्ट जो है आप डालते हैं विद द क्लाउड के जी। अगर किसी एरिया में आपने डेटा सेंटर्स बना दिए हैं तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, और उसको नॉर्मल एयर कंडीशनिंग और इससे हैंडल करना भी मुश्किल है। तो इसलिए डेटा सेंटर के अपने डिजाइन में एक कूलिंग जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नेटवर्किंग और उसके डिजाइन एस्पेक्ट और सर्विसेज के एस्पेक्ट के अलावा कूलिंग, तो इसके लिए एक बड़ा कॉमन फिनोमेना या जो मैकेनिज्म यूज होता रहा है, दैट हैज बीन वाटर कूलिंग। तो वाटर कूलिंग बड़ी कॉमन यूज होती रही है। इस वजह से अगर आप डेटा सेंटर्स देखें तो ज्यादातर डेटा सेंटर जो है ना, वाटर रिसोर्स पर्टिकुलरली सीज के करीब बनाए गए, सी के करीब। तो इस पे भी केसेस होते रहे वर्ल्ड वाइड कि ये हुए कि जिन आप सी से जैसे कैनाल लाए और उसमें ला के डेटा सेंटर में वाटर कूलिंग की और वापस दूसरी तरफ से दूसरी कैनाल जाके सी में वापस डालती है। तो यूएस में इन अर्ली डेज देयर हैव बीन मेनी लॉ सूट्स फाइल्ड अगेंस्ट इट कि जी ये स्पीशीज जो सी स्पीशीज के अगेंस्ट है, क्योंकि सी का टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। तो उस पर फिर वो साइंटिफिक एविडेंस देते रहे कि जी ये डिसिपेट इतना होता है कि इसका इम्पैक्ट कम है अदर रादर देन कि हम और कोई यूज करेंगे। तो सी वाली वाटर कूलिंग काफी यूज होती है। तो एनीवेज ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्लाउड एक तरफ से, तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में हम बता रहे हैं कि जी कम करता है, बट इन अदर कॉन्टेक्स्ट इट मे हैव एन इम्पैक्ट इन स्पेसिफिक एरियाज कि जी एक जगह पे जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। अदरवाइज ग्लोबली यस, इट मेक्स इट बेटर। So benefit, there are many benefits. One is a major benefit is global connectivity. You can be connected anywhere. Yes, you are connected over the internet. और बहुत बड़ा benefit है. But there is the hidden challenge एज वेल। ठीक है, जैसे इस वक्त हम क्लास ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लास, दिस इज अ ह्यूज ह्यूज बेनिफिट जिसको हम पहले शायद इतना यूटिलाइज भी नहीं करते थे। अभी जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ दूसरे सिटी से स्टूडेंट है, तो यस वी विल कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। तो अगर कोई बाहर से इस क्लास को अटेंड करना चाहे तो मेजर ऑब्जेक्टिव इज नॉट हिज फिजिकल प्रेजेंस, मेजर ऑब्जेक्टिव इज हिज लर्निंग। तो अगर कोई लर्न कर सकता है एंड बजाय इसके कि वो 400 किलोमीटर ट्रेवल करके आए, थका हुआ है और थके हुए ब्रेन से फिजिकल लेक्चर सुने, व्हाई नॉट ही शुड बी लिसनिंग दिस लेक्चर विद अ फ्रेश माइंड बाय सिटिंग इन हिज होम, और उस सारी हैसल से भी बचे और बेटर फ्रेश माइंड से करे।
तो लेकिन अब इसमें चैलेंज भी है, ठीक है, तो दिस इज अ बिग बेनिफिट। चैलेंज क्या है? वही क्लाउड में भी वही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिकॉज वी आर राइट नाउ कनेक्टेड विद इंटरनेट। तो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो जाए तो इट्स बिग प्रॉब्लम, और अगर मेरी में हो जाए तो दिस इज अ डिजास्टर्स सिचुएशन। मैंने इस वक्त भी रेडी रखा हुआ है 4G साथ, क्योंकि मेरी कल 1-2 दिन से थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू हुआ था, मेरे ख्याल में मैंने फिक्स कर दिया है, बिकॉज आई कंप्लेन्ड इन द मॉर्निंग टुडे। तो लेकिन मैंने इस वक्त भी उस पर हॉटस्पॉट ऑन करके 4G कनेक्टिविटी को लेकर से रखा हुआ है कि इन केस ये डिस्टर्ब हो गया तो आई नीड टू हैव दैट, बट सपोज both are broken तो फिर ये प्रॉब्लम है। So if you're running problem is enterprise level services and you lost the connectivity, so that is a big challenge. But cloud providers, from the cloud providers perspective, they assure you this because they generally come up with so many alternative ways to provide a consistent connectivity. पाकिस्तान में आपने देखे प्रॉब्लम होता रहा है। आपको पता है कि हम मेन लिंक जो हमारी केबल है, T1 है, कौन सी केबल है, उसके साथ हम कनेक्टेड हैं इन द सी। और द फर्स्ट टाइम आई हर्ड एंड मेनी ऑफ यू वंस हैव हर्ड, यू माइट हैव लॉफ्ड कि जी ये कोई मजाक कर रहे हैं कि जी शार्क ने केबल खा ली है तो जी इसलिए, या केबल को काट लिया है तो वी आर ब्रोकन फ्रॉम द इंटरनेट। सो क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मुझे भी नहीं पता था, दिस इज हाउ वी हैव बीन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, सो और टू द ग्लोब अलोफ्ट। अच्छा यार ये कोई हमें मजाक कर रहा है, तो ये कैसे? एंड देन लेटर ऑन वी केम टू नो यस भाई ऐसे ही है। सो वी ऑल द होल पाकिस्तान इज बीन कन्वर्ट इनटू वन लिंक, जो कि ग्लोबल नेटवर्क के साथ बीच में सी में जाके बहिरा अरब में हम कनेक्ट होते हैं टू द मेजर लिंक, जो कि दुबई से मुंबई जा रहा है, उसके साथ बीच में हम कनेक्टेड हैं। तो और वो जब भी कभी ये जो शार्ट्स होती हैं वो आपकी कर जाती हैं, तो वो कर दें तो फिर देन वी गेट डिस्कनेक्टेड। यस वी डू हैव अ बैकअप लिंक जो कि फिर सैटेलाइट के थ्रू होता है, एंड दैट इज वेरी स्लो, बहुत कम उस पर बैंडविड्थ भी मिलती है, और स्लो भी होता है बिकॉज इट गोज अबाउ, और उसकी आपका जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैकेट्स की लॉन्ग ट्रैवलिंग आपकी पिंग और वो जो ट्रैवल टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है, तो आपको बड़ी सर एक जनरल क्वेश्चन है, कैन जी आई जी जी आस्क? सर जी जी। तो आपको सॉरी मैं इसे कंप्लीट कर लूं, तो अभी ये जो सी पैक है, सी पैक के साथ एक और आपको जहाँ रोड नेटवर्क मिल रहा है, आपको रेलवे नेटवर्क मिल रहा है, एक और नेटवर्क जो है दैट इज योर इंटरनेट बैक हॉल। आपकी एक जो है ना I don't know 20 टेरा बिट्स पर सेकंड की या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट फिगर, उसकी कनेक्टिविटी का लिंक भी अब चाइना के थ्रू भी मिलेगा। तो अब आपको डबल कनेक्टिविटी हो जाएगी, एक तो आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी और दूसरा आपको बैकअप लिंक ऑन फिजिकल वायर मिल जाएगी। Then interactivity is yes, it gives you very seamless interface or it's very easy to use, but again it depends कि अर्ली स्टेज में देर इज अ लर्निंग कर्व एज वेल। तो इंटरफेस तो सीमलेस मिलते हैं बट देर इज अ लर्निंग एज वेल। तो जो कन्वेंशनल आपके एडमिन है, जो नेटवर्क एडमिन है, उसके लिए देर इज लर्निंग इन्वॉल्व। Then reliability, yes, definitely. Cloud gives you a very, very good reliability level because they generally gives you auto backups, and then they give you also option कि आप अपने customize backups करना चाहते हैं, आप reliability assurance multi levels की करना चाहते हैं, you can do that as well. फिर reliability के साथ साथ performance भी आपको मिल जाती है। जैसे in general, yes, cloud services are good, but then if you are having a global scale application, large scale application, you are like Yahoo, you are like Facebook, you are like WhatsApp, so you can जो बहुत commonly use होते हैं, so you can host multiple servers which can be near to the end users. तो जो end users हैं उनके करीब, जैसे हमारी email servers हैं तो they might be hosted in India और China और Japan, जो जो हमारे करीब है। तो हमारे ज्यादातर चीजें ऐसे ही एशिया पैसिफिक में, इंडिया में है, या चाइना वगैरह में इस वक्त होस्टेड हैं, या दुबई में। देन जो इम्पोर्टेंट एक इसका है दैट इज पे यू गो, बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देनी, जितनी आप सर्विसेज यूज करेंगे उतना ही आप पे करेंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड। इस वक्त बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो इसी तरह हो चुकी हैं, आपकी क्लाउड बेस्ड जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मिलती हैं। अच्छा जी पर मंथ आप पे करते हैं एप्लीकेशन का। Then ease of programmability, programming ease है, again question mark है इसके ऊपर कि whether it's really easy. Yes, it's easy, it depends again कि for example आपको pre-configured environment मिल जाते हैं।
So yes, you can do that, but there are many things which are new. तो उसके लिए there is a learning curve involved. Then manage large amount of data. Yes, cloud is very good for that. क्योंकि आपकी जब scalability हो रही है तो not only in your uh, computing services but also in the data as well. So the cloud is quite good for managing large size of data, particularly the big data. Performance and efficiency is there. You can deploy the things faster. You can think about it and you can quickly do that. Cost is involved, so the cost is, it's quite cost efficient. क्योंकि देखें आपकी जो कॉस्ट है वो डेफर होगी ओवर द years. आप जो आज मनी स्पेंड करते हैं, if you spend it onto your core business, that is going to give you more reward. So probably हो सकता है कि वो जो रिवॉर्ड है वो इस क्लाउड की सर्विसेज को जो कॉस्ट आ रही है उसको कवर करना शुरू कर। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने बात की कि स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी आपको मिल रही है, यू कैन क्विकली स्केल, सो इट्स रियली इलास्टिक। जितनी आपकी जरूरत पड़ती है उतनी ही इलास्टिसिटी ये प्रोवाइड करता है, ये ज्यादा और कम होता जाएगा, ठीक है। और क्लाउड प्रोवाइडर ये कैसे देता है, ये क्लाउड प्रोवाइडर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर ने भी तो इवेंचुअली आपको जो सर्विसेज दे रहा है कहीं से कमाना है और कहीं से खाना है। तो क्लाउड प्रोवाइडर वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं जिनके कस्टमर डाइवोर्स हो, उन कस्टमर के पीक आवर्स डिफरेंट है, ये बड़ा क्रिटिकल है क्लाउड में। तो ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स जिनके ज्यादा इंटरनेशनल कस्टमर है वो ज्यादा बेनिफिट में रहते हैं और ज्यादा डाइवोर्स कस्टमर है, क्योंकि उनके पास यस दे हैव टू ऑफर डाइवर्स सर्विसेज एज वेल, लेकिन उनकी जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो डिफरेंट आवर्स में हो रही होती है, क्योंकि उनके पीक आवर्स डिफरेंट होते हैं। दिस इज वेरी क्रिटिकल। तो लेट्स से अगर पाकिस्तानी 6 बैंक एक ही क्लाउड प्रोवाइडर के पास आ जाएं, तो आप देख सकते हैं कि उनका यूजेज पैटर्न बड़ा टिपिकल एक ही जैसा होगा। तो क्लाउड प्रोवाइडर के जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन उसके अपने पर्सपेक्टिव से होगी। लेट्स से हर बैंक को 100 की पीक आवर्स में जरूरत होती है और ऑफ पीक में जो सबसे उसके कम ऑफ पीक आवर्स हैं उनमें 10 मशीन की होती है और 6 बैंक हैं। तो 6 बैंक जो है पीक आवर्स में क्लाउड प्रोवाइडर को 600 मशीन चाहिए होंगी और ऑफ पीक में सिर्फ 60, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो रही। तो क्लाउड प्रोवाइडर की अपनी रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज होनी चाहिए, तभी वो कमाई करता है। अदरवाइज इस केस में तो उसको बहुत महंगी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, और ये एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तानी जो क्लाउड प्रोवाइडर जो आती नहीं है कंपनीज को बहुत ज्यादा आपने देखा है पिछले 8-10 साल से कोशिश करें, सक्सेसफुल नहीं हो सकी। वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि चूंकि उनके जनरली क्लाइंट लोकल आता है और स्पेशलाइज्ड आता है। जो मेजर क्लाइंटल कौन है, ज्यादा बैंक्स हैं, डिफेंस सेक्टर हो सकता है आपका, टेल्को है, इस तरह के आपके आता है। तो उनके जो पीक आवर्स ऑफ पीक आवर्स मिलते जुलते हैं, टाइप्स ऑफ सर्विसेज मिलती जुलती हैं, तो दिस इज अ बिग चैलेंज। अब गूगल है, अमेजोन है, ये इनके पूरी दुनिया में कस्टमर्स हैं, सो दे आर मोर सक्सेसफुल इन दैट। ये एक बड़ा मेजर चैलेंज है क्लाउड प्रोवाइडर के पास। जी, यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन हो? एनी क्वेश्चन? जी, so these are the main things. Then at small aspects, the cloud solutions, they are the answer to the data storage problem, which was a growing issue. So where to store the data? So you can see here कि किस तरीके से जो आपकी data storage over the cloud है वो बढ़ती जा रही है। So if you go back into 2010, so most of the storage was on cloud on the devices themselves, whereas now most of the storage is on cloud based. So those are 19 के ही लगभग जो है now it's been crossed, और anticipation क्या है कि gradually it will increase and increase. So by 2025, in coming 5 years, it will be more than 60% on the cloud, and around 30% would be on the devices. And then there may be some other storages as well जो कि डिवाइस या हाइब्रिड वे में आपने कहीं स्टोर की हुई है या कैशेस में है और इस तरह की जगह पे। तो स्टोरेज जो है वो भी क्लाउड बेस्ड ज्यादा होती जा रही है। और जो आपकी एंटरप्राइज स्टोरेजेस हैं ग्रेजुअली दे विल बिकम ऑब्सोलीट। 2015 में आपकी ट्रेडिशनल स्टोरेजेस ज्यादा यूज होती थी, वो ज्यादा बिकती थी। आपकी जैसे डिस्क हैं, आपकी हार्ड डिस्क हैं, खास तौर से अगर हम एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं तो उस केस में बहुत बड़ा शेयर था
जो कि आपकी ट्रेडिशनल स्टोरेजेस पे था, वो ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। इंडिविजुअल तो चूंकि डिवाइसेस बेस्ड काफ़ी करते हैं स्टोरेजेस अभी भी, तो उनकी ट्रेडिशनल स्टोरेजेस पर हैं। So 2022 में it's going to be around 43% on traditional and 57. So now more than 50% would be on cloud storage. And by 2026, it's anticipated that most of your storage will be on the cloud-based stuff. तो ये बहुत बड़ी शिफ्ट है, जिसकी वजह से जो क्लाउड है इट्स रियली इसेंशियल। इसीलिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स हम वो कहते हैं कि ये दिस इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, वेदर यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आईटी स्टूडेंट और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो ये सबके लिए जरूरी है, क्योंकि बिकॉज यू नीड टू नो कि जी हमारे पास कंप्यूटिंग के पर्सपेक्टिव में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। देयर इज एन आईटी एफिशिएंसी चैलेंज, जिसकी वजह से इवेंचुअली वी went towards the cloud. In a very simplified environment, जो simplified IT services हैं उनमें it's very easy to manage those things. So you do have software deployments, you have license tracking, you have a little bit of mobility management. ठीक है, तो आप डेटा मैनेजमेंट करते हैं, ये सारे ये आप काम कर रहे होते हैं, so it's quite easy here. Then you go towards standardization and with some security. So the things, they become a bit more challenging. So you started implying your change management processes. You are doing some sort of security measures as well, like encryption and other stuff. Then you have variety of operating systems or the runtimes as well. And then you have implied some sort of automation in the scripting as well. Then you make the things more sophisticated. You make your IT infrastructure more state of the art. You go towards the tiered storage. You go for more reliable data as well. So you do the data duplication and deduplication. And then so you are storing that storage in archives as well. इससे भी ज्यादा एडवांस होते हैं जो अब रिसेंट वो था और जो अब कॉमनली काफी यूज होता रहा, दैट इज यू अप्लाई द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज एज वेल। वर्चुअलाइजेशन में जो सबसे बड़ा फायदा है दैट इज द कंसोलिडेशन। यू डू द सर्वर कंसोलिडेशन। सर्वर कंसोलिडेशन क्या होती है? यू यूटिलाइज योर सर्वर एट मैक्स। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मल में सर्वर 18-20% यूज होता है। So with the virtualization, what you do is you run multiple virtual machine onto one physical machine, जो सर्वर मशीन है। आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। So you run multiple machines onto one machine, और इसके थ्रू आप फिर उस सर्वर को कंसोलिडेट करते हैं। So you maximum utilize that. So same you can do the storage consolidation as well. Most of the storages, they are wasted because you anticipate it for the future use and you are using some part of that. एंड यू आर वेटिंग कि अच्छा जी 3 साल में हमारा इतना यूजर हो जाएगा, 5 साल में इतना हो जाएगा, तो उसी के लिए अभी से हमने लगा के रख दिया। बट क्लाउड यू डू इट with these virtualization technology, and then you do desktop consolidations as well. But once you reach this level, the things, they become much difficult. So it's better to do what? To do these headaches to third party and go for cloud-based services to have more sophisticated services, more state-of-the-art, on-demand, and variety available. Okay, so you go for on-demand IT infrastructures, reliable, secure, scalable. Very important is scalability, because with your own infrastructure, if there is a more increased demand, you cannot immediately provide it. So there is a long cycle of procurement and everything. Whereas in the cloud services, you immediately go for that. और ये अगेन वही बात कि आप अपने कोर ड्यूटीज पे और कोर चीजों पे आप फोकस करते हैं, so there is a huge cost saving as well, and it is really ideally suitable to for from every type of business, whether you are a small to medium businesses or to enterprise businesses. So every type of solutions are there, and especially in terms of cost, it's really advantageous to everyone. So in cloud, what we do, we reallocate our IT expenditures. And most of the companies, they have been spending their 80% of IT budget on operation and maintenance. So ये जो operation and maintenance है, इस बीमारी को आप क्या करते हैं क्लाउड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं onto other stuff, onto third party, onto the cloud. So cloud क्या करता है, वो आपकी लेबर कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, और वो आपकी जो भी फैसिलिटीज हैं उनको ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, उन चीज़ों को भी वो डिक्रीज कर देता है। तो आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं
उनको रिड्यूस करके आपके ऊपर से ये हेडेक सारा जो है वो क्लाउड खत्म कर देता है. So you reallocate these IT expenditures and you spend these by paying in terms of rental resources. और इस सारे में साथ साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. अब डिफरेंट किस्म की फिगर्स हैं. दिस इज बिट ओल्ड. Cloud distribution and growth. In 2009, it was about 17 billion market dollars market. 2013 में 44 billion की थी, and now it's much huge. I think it's 150 plus. ये पब्लिक क्लाउड मार्केट फोरकास्ट है. दिस इज मोर करंट, और इसमें आप देख सकते हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज. सबसे बड़ी जो मार्केट है दैट इज फॉर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की है. क्योंकि वो एग्जिस्टिंग जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो सारी उसमें आ जाती हैं. फेसबुक आप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ये सारे आप वीडियो गेम्स प्ले करते हैं ऑनलाइन, आप उन वीडियो गेम्स के अंदर परचेजेस करते हैं, मोबाइल ऐप्स हैं बेशुमार, ये सारी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आपके आ जाती हैं. So from 2008 you can see there was a very small market, और इतने ही 10-12-13 सालों में क्लाउड मार्केट कहीं से कहीं पहुंच गई है. So in 2020 it's around 160 billion dollars. ठीक है, तो काफी बड़ी मार्केट है जो कि इस वक्त क्लाउड कंप्यूटिंग की. एंड द ग्रोथ रेट यू कैन सी इट्स रियली वेरी हाई. 2015 में 5 साल पहले तकरीबन 100 बिलियन डॉलर, सॉरी 100 बिलियन डॉलर पे थी, एंड राइट नाउ इट्स अराउंड 160 बिलियन डॉलर. अगेन ये फिगर्स आपको डिफरेंट मिलेंगी किस तरीके. उसमें एक तो रीजन ये कि कलेक्शन कैसे हुई है डेटा की, और दूसरा ये कि किस चीज को उन्होंने क्लासिफाई किया है कि कौन कौन सी चीज क्लाउड सर्विस है और कौन सी नहीं है. तो ये जो डेटा है दिस इज फ्रॉम फॉरेस्ट रिसर्च, डिफरेंट सोर्सेज से हमने इसमें डाला हुआ है. और ये अगेन ये एक और फोरकास्ट है, ये गार्टनर की है. अब गार्टनर आपको पता है इट्स आल्सो वेरी वेरी बिग नेम, और अक्टूबर 2017 की है. अब यहाँ पे अगर आप क्लाउड मार्केट फोरकास्ट, ये भी है और ये भी है, तो दोनों में यू कैन सी अ डिफरेंस. यहाँ पे अराउंड 160 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे 411 बिलियन डॉलर की मार्केट बता रहे हैं. सो व्हाई इट्स डिफरेंट, वो अगेन वही कि एक तो डेटा कलेक्शन का भी फर्क है, लेकिन मेनली फर्क क्लासिफिकेशन का है कि किस चीज को ये क्लासिफाई कर रहे हैं. तो इसमें इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में, एप्लीकेशन सर्विसेज में, बिजनेस प्रोसेस की सर्विसेज में, इस तरह करके इन्होंने इसको बताया है. ठीक है जी. और ये उसी की अब डिफ्रेंसिएशन बताई हुई है कि जी टोटल जो एनुअल ग्रोथ रेट जो हैं इनके फ्रॉम 2016 टू 2020, वो ग्रोथ रेट क्या है. तो क्योंकि एप्लीकेशन सर्विसेज जो है, सास सर्विसेज इन्हें कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. आपने नाम सुने होंगे, 3 मेजर टाइप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. तो जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज है उसकी सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ रेट की बात हो रही है. तो मार्केट अगर आप इसकी देखें तो यहाँ भी सबसे बड़ी इसी की आ रही है, और इस एप्लीकेशन में भी सबसे, इस वाली फिगर में भी सबसे बड़ी सास की है. सास का आपको पता है वैसे ही पढ़ना काफी भारी होता है. तो यहाँ पे ग्रोथ रेट आ रहा है. तो सास तो चूंकि ऑलरेडी काफी वेल एस्टैब्लिश थी, पुरानी भी जो चीजें होती थी, जैसे हम ईमेल सर्विस ले रहे हैं तो दैट इज अ सास सर्विस, चैटिंग कर रहे हैं तो दैट इज अ सास सर्विस, ये हम जूम इंटरनेट क्लाउड मीटिंग यूज कर रहे हैं तो दैट इज अ सास सर्विस. सो दीज आर सास सर्विसेज. तो इनमें ग्रोथ रेट तकरीबन 15% का. वेयरएज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करने की बजाय आप क्लाउड बेस्ड पे चले जाएं, तो दैट हैज अ ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 23.31%, विच इज अ ह्यूज रेट. ठीक है, काफी बड़ा रेट है कि हर साल 23% का इजाफा हो जाता है. एंड दिस इज अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ. ठीक है जनाब, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है. Confusion about cloud computing is a very old confusion, or no longer too much true, कि अब इतनी ज़्यादा नहीं है. और उसमें क्या है जी, अच्छा, सिंपल एप्लीकेशन डिलीवरी एज ऑन डिमांड इज नो लॉन्गर नॉवल. यस, क्योंकि यू आर डूइंग इट नाउ स्पेशली सिंस वेरी वेरी लॉन्ग. और द बेनिफिट्स ऑफ स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, ease of deployment and ease of management for customers, and trade-offs against worries of trust availability still stand. This is true, क्योंकि क्लाउड पे सिक्योरिटी इशू नहीं है, क्लाउड पे इशू ट्रस्ट का है.
ठीक है. People are worried because the data is being shared among or the platform is shared or the infrastructure is shared among multiple users, so there can be some breach. So there is a trust issue. ये trust issue अब काफी हद तक कम हो चुका है, but in the early days there was a huge trust issue. But the fact is that the cloud is much more secure than your own computer because आपका अपना infrastructure जो होता है, how many security measures you imply onto that. अगर आप एक normal सी company है तो कितने सिक्योरिटी मेजर्स लगाए होंगे आपने. फॉर एग्जांपल मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, यस दे डू हैव देयर ओन सर्विसेज, यूएमएस चला रही हैं और काफी सारी सर्विसेज चल रही हैं. So they have a certain level, they have a certain budget which they can spend, whereas the cloud जो है they can imply more security protocols, more security measures. Why? Because their security cost is going to be divided among so many customers. तो क्लाउड जनरली आपको ज्यादा सिक्योर सर्विसेज दे रहा होता है. एंड प्राइवेसी इशू ऑब्वियसली इट स्टैंड्स अलोंग विद दैट कि जी अगर सिक्योरिटी का है तो प्राइवेसी का भी आएगा, बिकॉज देयर मे बी अ प्राइवेसी ब्रीच एज वेल. देन अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, ऑनरशिप एंड सप्लायर परसिस्टेंस, यस दे आर देयर. अच्छा, इसके अलावा एक और इशू होता है कि आपका लीगल इश्यूज होते हैं क्लाउड में, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लीगल रूल्स होते हैं. सो सम टाइम ये हो सकता है कि आपका जो लीगल यहाँ पे रूल्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में वैसे ना हो. यूएस के तो और ज्यादा इश्यूज हैं, यूएस के तो स्टेट वाइज भी डिफरेंट है. तो आप यूएस के ही हैं तो एक स्टेट में एक रूल है तो दूसरे स्टेट में और कुछ हो सकता है, तो विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एज वेल ओवर हियर. तो पाकिस्तान में बैठे हैं और आप दुबई में या सऊदी अरब में आपने सर्विस ऑन कर ली, तो सऊदी अरब में तो शाही रूल है, तो वहाँ हो सकता है रूल कुछ और हो, आप नहीं कर सकते, कई चीज़ें नहीं कर सकते, या कई चीज़ें अलावा में पाकिस्तान में नहीं है. सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. इसी तरह प्राइवेसी के हवाले से प्राइवेसी पॉलिसीज हर जगह पे अपनी होती है, तो वो प्राइवेसी का इशू हो सकता है. तो दीज आर द कंसर्न जो कि लीगल इशू. फिर एक और बड़ा अच्छा जो फायदा है क्लाउड का वो ये है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है. यस, कि आप प्लेटफॉर्म वाइज आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है अपने यहाँ पे एक तो वैसे भी लोकल वो प्लेटफॉर्म्स इंस्टॉल करने की, रन टाइम इंस्टॉल करने की. आप क्लाउड पे चले जाएं, डेटा आपका मौजूद है, आप उठा के दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप उसमें कन्वर्ट कर दें, आप अमेजोन S3 में कर लें, आप गूगल ब्लॉब्स में कर लें, आप अपनी स्टोरेज को कुछ भी कर सकते हैं. और बट अगेन whether it's 100% true, it's challenging, it's not very easy, and that's why we can have a problem of vendor lock-in as well. क्लाउड में एक प्रॉब्लम होता है जिसे हम कहते हैं वेंडर लॉक. वेंडर लॉक-इन क्या होता है? आप एक वेंडर के साथ उसकी सर्विसेज यूज करते हैं और फिर सर्विसेज यूज करते करते आप उसके इतने आदी हो जाते हैं कि यू बिकम लॉक्ड विद दैट. You cannot easily leave that cloud provider. So that is a vendor lock-in. अब आप उसके क्योंकि डिपेंडेंट हो चुके होते हैं. ये नॉर्मल में भी होता है, आप कोई लेट्स से डिवाइसेस बनाते हैं और एक मैन्युफैक्चरर के आप डिपेंडेंट हो गए तो यस यू कैन हैव एन इश्यू जो उस मैन्युफैक्चरर के, अब आप वेंडर लॉक्ड इन में हैं, अब आपने उसी की वो चीज़ें यूज करनी है. इट्स नॉट वेरी इजी टू मूव. ठीक है जी. तो और भी काफी सारे वो थे जी. 2008 में इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि जी राइज ऑफ द क्लाउड इज मोर देन जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म शिफ्ट दैट गेट्स गीक्स एक्साइटेड. ठीक है, यदि क्लाउड जो है वो यस लोगों को एक्साइटेड तो कर रहा है, एंड इट विल अनडाउटली ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज इट विल profoundly change the way people work and companies operate, or it will allow digital technology to penetrate every nook and cranny of the economy. And if you just substitute cloud with the internet, it will look familiar because internet was the same thing. Okay, if you just put it internet here, internet is more than just another platform shift, and it is going to do the digital disruption or going to do a lot of other such type of stuff. So इससे बहुत बड़ी change आ जाएगी. So that is quite similar, but yes, internet was a big revolution, big enablement, big disruption actually. और क्लाउड भी यस आई डेनली से कि क्लाउड का क्योंकि हुआ ग्रेजुअल है, वो कॉन्सेप्ट पहले भी मौजूद थे, मोर स्ट्रॉन्गर होते गए, लेकिन क्लाउड इज आल्सो अ डिस्ट्रप्शन. ठीक है, इंटरनेट एक बड़ी रेवोल्यूशन थी. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, आपको क्या लगता है क्लाउड बड़ी रेवोल्यूशन है या क्लाउड बड़ी डिस्ट्रप्शन है या इंटरनेट बड़ी डिस्ट्रप्शन है? एनीवन?
as an opinion. Let's make it Yes, interactive. clouds. ये सबसे बड़ा मसला ये है ना कि इंटरेक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है जी. क्लाउड और अच्छा, क्लाउड बड़ी है या इंटरनेट बड़ी है जी? इंटरनेट सर. इंटरनेट. sir. वाई जी, इंटरनेट क्यों बड़ी है जी? इंटरनेट जो एक सर एंट्री पॉइंट है ना उस क्लाउड में जाने का, तो क्लाउड तो इटसेल्फ एक ह्यूज एरिया ऑफ एप्लीकेशन है, ह्यूज मतलब डोमेन है, इतना बड़ा डोमेन है कि इंटरनेट से तो उसमें सिर्फ आप एंटर होते हैं. इंटरनेट इज कैरियर टू पुट यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड जस्ट. उसके बाद फिर आप उस वो वर्ल्ड सही में है, रहते हैं. लेकिन आई थिंक इंटरनेट इज अ मच बिगर डिसरप्शन. द रीजन इज बिकॉज द इंटरनेट इज अ वेरी बिग इनेबलर. क्योंकि आपके एक तो उसने बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट कर दी. Yes, the concept of being network was there, but on a very, very small geographical scale, local area networks were there. Or you might be able to think about your own metropolitan area network for a very large scale organization if you go back in late 80s or early 90s. But the internet make a big disruption कि उसने दुनिया ही चेंज कर दी. उसने बहुत बड़ी चेंज की, और उसी चेंज की वजह से आस्ता 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 देयर हैव बीन सो मेनी इनेबलर्स, सो मेनी इनेबलर्स. तो अब क्लाउड में भी, अब क्लाउड वाली सर्विसेज, तो प्राइवेट क्लाउड तो वही है जो पहले था. ठीक है, कुछ चीजें हमने ज्यादा उसमें कर दी, ज्यादा कस्टमाइजेशन कर दी, ज्यादा ऑटो कर दिया. अदरवाइज क्लाउड का मेजर बेनिफिट क्या? ऑटो स्केलिंग और अनलिमिटेड स्केलिंग. वो आपको प्राइवेट क्लाउड में अनलिमिटेड तो नहीं मिलती, वो पब्लिक में ही मिलती है. तो जनरली हम जब क्लाउड कहते हैं तो हम मोस्टली वी आर रेफरिंग टू पब्लिक क्लाउड. तो उसका भी इनेबलर इंटरनेट है. इस वक्त जो क्लाउड के बाद एक बहुत बड़ी जो हमारे अगली डिसरप्शन आई, जो बहुत बड़ी डिसरप्शन है, अगर हम मेजर डिसरप्शन की बात करें, तो दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, अगेन इंटरनेट ऑफ थिंग का जो एनेबलर है वो एक ही है, वो क्लाउड, वो इंटरनेट ही है. ठीक है, तो ये दो तीन चीजों का जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है वो बिकॉज इंटरनेट है. तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनेबलर. तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की, दुनिया में पिछली गुज़श्ता 1.5 सदी में जो बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस हैं, तो उसमें प्रोबेबली सबसे बड़ी तो आईसी ही है. दोनों कंसेप्ट में आप कह सकते हैं कंप्यूटर भी है, लेकिन आईसी बहुत बड़ी है, क्योंकि आईसी मेड द थिंग्स वेरी इजी, वेरी स्मॉल. आज हमारे पास अगर ये डिवाइसेस हैं या हम ये यूज करते हैं, तो द रीजन इज आईसी. ठीक है, हम अगर कंप्यूटर यूज कर सकते हैं तो उसकी मेजर रीजन जो है ना, वो सबसे ज्यादा वजह आईसी है. अदरवाइज हमारी तो कंप्यूटेशन ही परफॉर्म नहीं करनी थी. और जितनी हमने प्रोग्रेस की है अदर देन कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अदर स्टफ लाइक वो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, इन सब में आईसी का बहुत ज्यादा रोल है. ठीक है, क्योंकि आईसी की वजह से हमारी जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो बहुत तेज से बढ़ी, क्योंकि वी मेक इट एनेबल टू हैव दैट होल थिंग ऑन टू वन चिप. तो आईसी को इसलिए हमें सलूट करना चाहिए, और ये बड़े कम लोगों को इस बात का आइडिया है कि जी आईसी जो है वो बहुत बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है. और जैसे एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन वो उसकी मेजर जो वो है जो आउटपुट है वो कंप्यूटर ही है. और फिर कंप्यूटर्स में मेनली जो रेवोल्यूशन आई, खास तौर से आईसी का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, बाकियों की खैर थी, वो कंप्यूटर ही है. फॉर एग्जांपल, आईसी इज देयर इन द टेलीविजन इज वेल, बट द टेलीविजन दे वर इवन बिफोर देन द आईसी इज वेल. तो वो टेलीविजन की स्क्रीन उतनी है, बल्कि और बड़ी कर दी है हमने. तो टेलीविजन का साइज तो शायद उतना ही है, विड्थ में कम हो गया, वो डेप्थ में सॉरी, लेकिन इस तरह लेंथ विड्थ में बढ़ गया. तो और बेशुमार इसी तरह की चीजें हैं. वीसीआर भी ठीक है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था आईसी से पहले भी वीसीआर टाइप की चीज. तो ऑडियो प्लेयर्स भी जो वो पुराने होते थे, तो वो भी ठीक है, उनमें फर्क है. लेकिन जो मेजर डिस्ट्रप्शन की है दैट इज थ्रू द कंप्यूटर्स आईसी में. और कंप्यूटर्स के थ्रू क्या हुआ, इट हेल्प्ड अस अ लॉट इन एवरी टाइप ऑफ साइंटिफिक स्टफ, साइंटिफिक डिस्कवरीज में, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, चाहे न्यू जीन्स की तलाश है, कोई भी चीज है, उसमें वी यूज कंप्यूटर्स बाय लार्ज. और बाकी जो एनेबलमेंट ऑफ अवर डेली लाइफ एक्टिविटीज है डायरेक्टली थ्रू कंप्यूटर साइंस, वो तो है ही है हमारे सामने. चाहे वो हेल रेडिंग सर्विसेज हैं लाइक उबर क्रीम, चाहे इंटरनेट है, चाहे हमें मीडिया एक्सेस है, चाहे बैंकिंग एप्लीकेशन है, चाहे कुछ भी है,
वो हमारे सामने है, तो सारे में उसका। तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे आती है, इससे कम लेवल पे, दैट इज इंटरनेट। और फिर इंटरनेट के बाद जो है इस वाली साइड पे, वो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इनसे थोड़ी सी कम, काफी हद तक कम है, दैट इज नाउ इसी डोमेन में आ जाती है, दैट इज एज एंड फॉग कंप्यूटिंग नाउ, व्हिच इज अगेन अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मोर। और अगर इसके अलावा बात करें तो एक बहुत बड़ी जो इस वक्त रेवोल्यूशन चल रही है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ, यस, एनालिटिक्स एंड दोस स्टफ। बट एक जो बड़ी मेजर अच्छी रेवोल्यूशन है, दैट इज 3D प्रिंटिंग। इस पे बहुत ज्यादा सीरियसली हम शायद डिस्कस नहीं करते, हमारे उनमें नहीं होता, लेकिन 3D प्रिंटिंग इज अ बिग 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 रेवोल्यूशन एंड इट्स गोइंग टू डू अ ह्यूज डिसरप्शन। ठीक है, थिंक अबाउट इट के आपकी हर चीज ही अब इसी तरह होगी, बिकॉज आपकी मैन्युफैक्चरिंग सारी शिफ्ट हो जाएगी ना। तो आप कहने, यू थिंक अबाउट अ मॉडल, यू वांट टू हैव अ कार, कार को थोड़ा सा मजीद कस्टमाइज करें, और सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू टेल यू कि इसकी एरोडायनेमिक्स जो है यूं ठीक है, या आपने आप थोड़ा सा इसको यूं चेंज किया है, तो अब ये जो है ना, ये गड़बड़ हो जाए, ये इससे ड्रैग बढ़ जाएगा, ड्रैग कोफिशिएंट, एंड यू आर गोइंग टू हैव मोर फ्यूल कंजम्पशन, या यूं कर लें तो कम हो जाएगा, एंड इवेंचुअली कम अप विद योर ओन डिजाइन, और आपने बटन दबाया और आपकी कार बन गई। ठीक है, so maybe in coming 15 or 20 years you will reach up to that level, but even at this time you can construct a mini home। ठीक है, अब होम्स आपने देखे बनने शुरू हो गए, और इस तरह की चीजें आपकी वो हो गई हैं। तो इट्स अ बिग रेवोल्यूशन अगेन 3D प्रिंटिंग। ओके जी, लेट्स मूव फर्दर। एप्लीकेशन एनेबल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से, तो क्लाउड कंप्यूटिंग डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस के साथ के लिए सूटेबल है, सिर्फ ये नहीं कि एक ही तरह की। So you can have high growth application, aperiodic bursting applications, periodic application and on-off applications। तो high growth applications क्या होती हैं, जिनमें सडनली बड़ी ग्रोथ आ जाए, तो आपकी एवरी डे आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलने लग गया है, so you cannot have those traditional procurement cycles। So your application, if it is being hosted onto cloud, so cloud provider का दर्द सर है कि he has to provide you all those resources। तो आपकी जो है वो ऑटो स्केलिंग होगी और वो बढ़ती जाएगी। सो इट्स वेरी इजी टू मूव योर थिंग्स टू द अदर क्लाउड प्रोवाइडर। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप एक पे तो मौजूद हैं, यू कैन होस्ट योर सर्विसेज ऑन टू अनदर क्लाउड प्रोवाइडर इज। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी एक और एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से आई स्टार्टेड अ बिजनेस एंड आई एम डूइंग गुड, और लेट्स से आई एम होस्टिंग माय सर्विसेज इनटू अ लोकल क्लाउड प्रोवाइडर। अब लोकल क्लाउड प्रोवाइडर आपको ऑब्वियसली पता है पाकिस्तान में उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होगी, बट सपोज करें कि इट्स कॉस्टिंग मी चीपर देन एनी इंटरनेशनल वेरी बिग नेम, और एक और क्लाउड प्रोवाइडर है वो भी मुझे चीप ही पड़ रहा है। तो मुझे रिस्क ये लगता है कि पाकिस्तानी क्लाउड प्रोवाइडर जो हैं, दे माइट एंड अप के अच्छा हम जो है ना स्केल आउट तो कर रहे हैं, लेकिन एट एक टाइम के बाद उनकी भी कैपेसिटी जवाब दे देगी, बिकॉज यस दे आर ऑन रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे लिए तो वर्चुअल है, और वो प्रॉमिस करते हैं कि जी अनलिमिटेड है, लेकिन प्रैक्टिकली तो अनलिमिटेड नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन होस्ट इट ऑन टू अनदर एज वेल। तो दूसरे पे भी तो मैं दो क्लाउड प्रोवाइडर्स की सर्विसेज ले रहा हूँ, ताकि मेरा रिस्क मिटिगेट हो जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम एक क्लाउड प्रोवाइडर को हो जाए तो दूसरा चल। इसकी एक और एग्जांपल दूसरी तरह हो सकती है, जैसे एपरियोडिक इसके बाद आएंगी एप्लीकेशन। एपरियोडिक में ये कि यकायक आपका लोड बढ़ गया। ठीक है, यकायक आपका जो है ना लोड बढ़ गया, और आपके लोकल सर्वर्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने बैकअप सर्वर्स रखे हुए हैं, और बैकअप रखे हुए हैं, और बैकअप कहाँ रखे हुए हैं, या लाइव रखे हुए हैं बेशक, वो मैंने रखे हुए हैं बाहर के इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। सो यू कैन डू दैट एज वेल, यू कैन हैव दैट स्ट्रेटजी। उसकी एग्जांपल क्या है, बैंक्स के सर्वर्स हैं, तो बैंक्स ने क्लाउड्स पे होस्ट किए हुए, सबने लोकल पे किए हुए, और लेट्स से एसबीपी की रेगुलेशन है कि आपका नॉर्मल में डेटा जो है वो लोकल हो, या बिकॉज ऑफ लेटेंसी इशू आपने लोकल पे किया हुआ। तो आज के दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जनाब पुरानी जो करेंसी खत्म हो गई है, या समथिंग दे डिड इट, और सारे जो है ना बैंक अकाउंट्स के ऊपर एकदम से बर्डन बढ़ गया। तो दे वो जो स्केल अप हुआ है, तो लोकल लिमिट को जो है वो रीच कर गए, तो क्लाउड प्रोवाइडर जो है वही बैठने शुरू हो गए। तो इस केस में अगर आपने पहले से ही अपना कॉन्टीजेंसी प्लान किया हुआ है, तो अ गुड प्लान इज कि आप अपना जो है जो बैकअप है
ये अपना साथ साथ एक और जो रेप्लिका है उसे क्लाउड के ऊपर रखें, इंटरनेशनल क्लाउड पे। अब आप नहीं यूज करें, इज नॉट गोइंग टू चार्ज यू अ सिंगल पेनी। आप सिर्फ उनके कस्टमर हैं, वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। तो जो ही आपकी रिक्वायरमेंट आएगी वो चल पड़ेगी, वो वहां पे चल जाएगी, और ज्यादा होती जा रही है वो ज्यादा चलती जाएगी। ठीक है, सो फॉर दीज रीजंस क्लाउड इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। सो ये वही आ गई एपीरियोडिक बर्स्टिंग एप्लीकेशन के सडनली आपका कोई आ गया। तो इसकी कुछ केसेस थे, जैसे CNN वेंट डाउन ड्यू टू 9/11, क्योंकि सबने पता करना शुरू कर दिया जी कितने जहाज आगे लगे हैं उस उन टावर्स पे, तो CNN वाज डाउन। और फरवरी 14 को बिजिएस्ट डे होता है ऑफ द ईयर का। हॉलमार्क आपको पता है बहुत फेमस ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती थी, पर्टिकुलरली फॉर गिफ्ट्स एंड कार्ड्स एंड ऑल दिस स्टफ। तो पहले तो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, particularly in the US, or it went down in certain year. It's not been mentioned here on February 14 because it's the busiest day. So normal में आपके customers की आपकी accesses आती हैं, let's say in one day 10,000, तो इस दिन कम से कम 1 लाख आ गए। आपको पता है वैलेंटाइंस डे, तो बहुत ज्यादा आपकी accesses बढ़ती। फिर इसी तरह हॉलीडे सीजन है, अब बॉक्सिंग डे है, ब्लैक फ्राइडे है। अब तो पाकिस्तान में भी ये वाले सारी चीजें शुरू हो गई हैं। बॉक्सिंग डे मेरे हाल में नहीं है कभी। तो उस दिन जो है आपकी ये सेल्स आ गई हैं, और सेल्स में आपकी सडनली बढ़ गई रिक्वायरमेंट। तो दे कुड नॉट एक्चुअली हैंडल दिस थिंग। Dockers was crashed in within 10 minutes of the free trouser promotion during Super Bowl 2010। ठीक है, तो वो भी इसी तरह, तो इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए यू कैन हैव क्लाउड, ताकि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। देन पीरियोडिक एप्लीकेशन, जैसे पहले बात की, पीक आवर्स, ऑफ पीक आवर्स। तो कभी आपको ज्यादा कंप्यूटेशन चाहिए, कभी कम चाहिए। इन अ डे भी हो सकता है, विद इन अ वीक भी हो सकता है। जैसे विद इन अ डे आपको पता है जी पीक आवर्स हैं जी, लेट्स से 9 से 5 है, उसके बाद हाफ पीक आवर है, और फिर बिल्कुल ऑफ पीक आवर है। और लेकिन जब आप वीकेंड पे जाते हैं तो जो पीक आवर्स पहले थे वो पीक नहीं रहते, वो शायद हाफ पीक या मिड पीक आवर हो जाए। और जो ऑफ पीक थे वो ऑफ पीक की बजाय एक्सट्रीम लो पीक आवर, लो ऑफ पीक आवर जो है कि ऑफ पीक से भी वो कम हो जाए, कि आपकी 3 या 4 मशीनें चलती हैं। आपने देखा सैटरडे संडे को वो एक्टिविटी भी नहीं हो रही होगी जो नॉर्मल में लोग ऑफ पीक में करते हैं। तो ये इसलिए आपके ये पीरियोडिक एप्लीकेशंस के लिए बहुत सूटेबल है। इसके लिए तो बहुत ज्यादा है कि आपका एक तो चार्ज उतना ही होता है जितनी आपको रिसोर्सेज चाहिए, उससे ज्यादा का चार्ज नहीं होता, और एनी टाइम अवेलेबल, आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। और ऑन ऑफ एप्लीकेशन, ये जिस तरह अभी भी मैंने कहा कि आप इंटरनेशनल क्लाउड वेंडर पे रख लें, जब कभी 6 महीने में आपका लोकल प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइड कर सक रहा है, कोई मसला हो रहा है या लोकल कोई इशू हो गया, तो वो वहां पे आपकी एप्लीकेशन रन करनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह let's say you run some simulation or some application for some time, and then you keep on doing some operation, और फिर आप 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई काम करते हैं, तो then you start using that। let's say ऑडिट की है, ऑडिट की एप्लीकेशन है, तो वो साल के बाद ऑडिट होता है, तो साल के बाद आप उसे चलाएंगे। so you can have this on off applications as well। टेक्निकल चैलेंजेस क्या है? प्रोग्रामिंग और द यूज कैन बी ट्रिकी। उसके डिफरेंट मॉड्स होते हैं, सॉरी मॉड्स होते हैं क्लाउड के यूजेज के। सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होता है दैट इज थ्रू दी स्क्रिप्ट, जो आप स्क्रिप्ट के थ्रू उसको करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, बिकॉज दे यूज इट ऑटोमेटेड काम करने के लिए। देन उनके कंसोल भी अवेलेबल होता है, आप उसके ऊपर शेल बेस्ड भी काम कर सकते हैं लाइव शेल के थ्रू। और तीसरा मोड जो होता है टिपिकली वो एपीआई बेस्ड होता है, कि आपको एपीआई एक्सेस मिल जाती है, या डायरेक्ट, सॉरी एपीआई कह रहा हूँ, एपीआई तो वो स्क्रिप्ट के थ्रू आप करते हैं। आपको जीयूआई बेस्ड मिल जाती है, तो आप जीयूआई पे जाके उनका कंसोल या डैशबोर्ड होता है, उस डैशबोर्ड के थ्रू आप काम करते हैं। टूल्स आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, न्यू विद एवरी पासिंग डे न्यू टूल्स आ रहे हैं। इफ यू आर मूविंग लार्ज amount of data, it's still expensive, not anymore, it has become a bit inexpensive, but still yes, they do charge you for moving the data, because network traffic in और out के cloud जो है वो charge करता है आपको।
Then security can be an issue. Generally, there are more trust issues. कि जी security नहीं है, but yes, security can be an issue as well. Uh, yes, cloud provider promises you and definitely delivers you better security than your own in-house infrastructure. But the problem is you are more vulnerable. क्यों? क्योंकि आप एक पब्लिक जगह पर हैं, आप बाहर हैं, आप किसी के साथ शेयर्ड उसमें, एंड देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी और मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस व्हिच कैन बी देयर, ठीक है, मशहूर हैं वो। ऐसे ही है, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर वेबसाइट मेरी भी हो और इमरान खान साहब की भी हो, तो ज़्यादा चांस हैक होने के जो है ना वो इमरान खान साहब के, ठीक है, इसी तरह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसी तरह शाहरुख खान की हो तो उसके उनसे भी ज़्यादा है। तो वजह क्या है कि सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑब्सक्योरिटी इज द बेस्ट सिक्योरिटी। अगर आपको कोई नहीं जानता तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो शाहरुख खान को चूंकि सारे लोग जानते हैं, तो दैट्स व्हाई देयर आर मोर चांसेस कि उसकी साइट पे ज्यादा अटैक्स होंगे। तो क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर अटैक भी ज्यादा होंगे, ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर सर के थ्रू। उसमें ये भी होता है, अगर उसी क्लाउड सर्विसेज से शाहरुख खान ने भी ली हुई है, उसी से आप सर्विसेज ले रहे हैं, तो वहां पे भी इफेक्ट करती है। हाँ जी, तो वो वही वाली बात कि जी किसी और की वजह से कोलेटरल डैमेज भी हो सकती है। जो मैं पहले कह रहा था कि वो न्यूज़ वेबसाइट या बैंक्स की वेबसाइट्स बैठ गई, साथ यूनिवर्सिटी की भी यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट या यूनिवर्सिटी की भी सर्विसेज वहीं चल रही थी। तो इवन डॉस अटैक ही हो गया, या वो वैसे ही बैठ गई, उसकी इतनी ज़्यादा यूजेज हो गई कि आपका जो क्लाउड ही बैठ गया है कि उसके क्लाउड के लिए वो फील हो रहा है कि डॉस अटैक हो गया, तो मेरी साइट भी बैठ जाएगी। हालांकि यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो बैंक्स के लिए आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी के भी सर्विसेज डाउन हो। सो यू कैन हैव दिस। तो इसी तरह ये है कि यस, शाहरुख खान के ऊपर अटैक हुआ, और वो अटैक ये हुआ कि इस वीएम को बिठाना है, और मैं भी उसी वीएम में मेरा जो वेब सर्वर था वो होस्टेड था। तो यस, इट कैन बी डन। देन क्वालिटी ऑफ सर्विस यू हैव टू प्रोवाइड इट। अब वो मल्टीपल लेवल पर है, क्वालिटी ऑफ सर्विस की पूरी चेन है, क्लाउड प्रोवाइडर ने भी देनी है, ही ट्राइज टू गिव हिज बेस्ट टू गिव यू बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस, बट देयर कैन बी इशू। बट देन मेजर पॉइंट कम्स, आपकी जो इंटरकनेक्टिविटी है उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस बड़ी मैटर करती है, उसकी वजह से भी इशू हो सकता है। अब क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो प्रॉब्लम बहुत सारी जगह पे हो सकता है। आपने लेट से अपना एक सर्वर ही बनाया है, सर्वर किस वेब सर्वर पे होस्ट है, उसकी क्वालिटी से इंपैक्ट पड़ता है आपकी सर्विस पे। क्लाइंट के लिए एक सर्विस सर्विस होती है, ठीक है। लेट से आप एक एप्लीकेशन आपने बना ली, और वो एप्लीकेशन है बैंकिंग एप्लीकेशन, आप जब यूज करते हैं तो बड़ी स्लो है, तो उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती है। उसकी रीजन ये हो सकती है कि जिस सर्वर पे होस्टेड है उस सर्वर से जो डाउनलिंक स्पीड है वो कम है, जो क्लाइंट यूज कर रहा है उसकी डाउनलोड स्पीड कम है, ठीक है। जो सर्वर होस्टेड है उसकी, सॉरी मैं डाउनलिंक बोला था, अपलिंक स्पीड कम है सर्वर से। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग हुई हुई उस एप्लीकेशन में वो प्रोग्रामिंग पुअर है, वो ऑप्टिमाइज नहीं है। जो प्रोग्रामर ने जिसने वो बैंकिंग एप्लीकेशन लिखी वो पुअर नहीं है, नहीं वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। जो सर्वर होस्ट हुआ है वो सर्वर ठीक नहीं, वो सर्वर की जो चॉइस है वो ठीक नहीं, वो सर्वर इतना ऑप्टिमाइज नहीं। लेकिन क्लाइंट को क्या फील होगा, ये बैंकिंग ठीक नहीं चलती। तो देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी वजह से आपका ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। देन ग्रीन कंप्यूटिंग बड़ा अच्छा फायदा, जैसा मैंने बताया जी, यस इट्स गुड फॉर दैट, क्योंकि शेयर करता है, बट ऑन दी अदर साइड क्योंकि शेयर करता है तो सारी चीजें एक जगह भी कर देता है। सो दैट इज अ चैलेंज इज दैट। तो किसी एक जगह को ये ज्यादा पोल्यूटेड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, और जो जिससे छुटकारा नहीं है, दैट इज इंटरनेट डिपेंडेंस। आप इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यस, देयर कैन बी क्लाउड प्रोवाइडर जिस जो आपको हो सकता है, जैसे लोकल क्लाउड प्रोवाइडर है, आपको डेडिकेटेड नेटवर्क दे दे। लाहौर या कराची जैसे सिटी में आपको जिस तरह अब आप देखते हैं कि आपको फाइबर कंपनीज अपनी डाल के इंटरनेट कनेक्टिविटी देती हैं, सो दे कैन गिव यू देयर ओन फाइबर कनेक्टिविटी विदाउट एनी इंटरनेट, और आप उसके ऊपर आ सकते हैं। अब उसका एक और बड़ा बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, कि और कोई उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर दुनिया नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ आप और आपके जो शेयर्ड बाकी यूजर हैं वो होंगे। समझ रहे ना बात, आप दुनिया के नेटवर्क से हटकर हैं। तो यू कैन हैव दिस मॉडल एज वेल। जी जो बैंक से कराची सिटी में बहुत सारे बैंक्स के हेड ऑफिस हैं, तो कराची सिटी में उन बैंक्स को दे दिया, या आम कंज्यूमर के लिए क्लाउड प्रोवाइडर है
मैंने वो तो नहीं करेंगे, लेकिन वो उन्होंने दे दिया जिस तरह इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं आपको कोई भी, जैसा फाइबर ऑप्टिक वाले हैं घर तक फाइबर ऑप्टिक, फाइबर टू द होम आपको देते हैं, तो फाइबर टू द होम ही आपको दे दी और आप मेन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, आप उस लाइन के थ्रू क्लाउड प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, तो दैट इज एक्चुअली लाइक अ थर्ड पार्टी प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, और नॉन टेक्निकल चैलेंजेस क्या हैं जी, ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम, यू कैन हैव अ वेंडर लॉक इन, ये जिस वेंडर के साथ हैं ग्रेजुअली बिकम डिपेंडेंट ऑन टू दैट, क्योंकि आप उसी की सर्विसेज ऐड ऑन करते जाते हैं, सो लेटर ऑन इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज को कस्टमाइज करते हैं, उनके अंदर स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, उनके अंदर ऑटो स्केलिंग करनी है तो भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो अब आपका पार्ट होते जाते हैं एप्लीकेशंस और आपके सर्विसेज। आप अब उसको जब मूव करना है, लेट्स से यू आर राइट नाउ ऑन Amazon and you want to move on to Google compute platform, it becomes very difficult। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, वैसे तो कहते हैं जी बड़ा इजी इंटरफेस, बड़ा इजीली फौरन से मूव होता है, इट्स नॉट इजी। देन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, हर क्लाउड प्रोवाइडर के अपने स्टैंडर्ड हैं, यस दे आर देयर, सो इट्स नॉट बिग नॉन टेक्निकल चैलेंज। सिक्योरिटी रिस्क्स आर देयर, प्राइवेसी इश्यूज आर देयर, लीगल इश्यूज जैसे मैंने पहले बताया। That's all for this module. Thanks for watching.